Thanks to Park Launch for the talk. Jashn Azadi Mubarak all, और माशाल्लाह 75 years of independence to Pakistan. और I would like to introduce our guest for today's talk regarding the semiconductors. So we have two brilliant guests. One is basically Dr. Naveed Sherwani. Another one is Yasir Javed Saab. So I will give some of the introduction for them. So मैंने LinkedIn से इनकी introduction थोड़ी सी ली है. Bio I will share with you. Dr. Sherwani has over 30 years of experience in entrepreneurship, teaching technical engineering and general management. Dr. Sherwani currently serves as a chairman of Silicon Federation, which enables semiconductor companies develop global growth strategies in addition to serving on multiple boards and advisors to the several companies. So Dr. Sherwani currently serves as chairman of Silicon Federation, which enables semiconductor companies. Prior to this role, he served as the chairman of and the president of and CEO of Sci5, which is basically a leader in the RISC-V ecosystem. He also served as the chairman of several companies, which includes Sci5, D5. In addition, he is also a chair of RISC-V Strategic Alliance at RISC-V International. Dr. Sherwani started his first company when he was only 18 years old. He has founded and co-founded multiple companies. Prior to joining Sci5, he founded PeerNova, a company focused on technology solution based on the blockchain technology. And also he served as the president and CEO of PeerNova. Under his leadership, Open Silicon designed over 300 ASICs. So he also a co-founder of Silicon. Prior to Open Silicon, as a founder of the general manager of Intel Microelectronic Services, he pioneered open methodology of ASICs. He also founded Bright Semi, a leading ASIC solution provider in China region. He has served on the board of various companies, including Touchstone Semiconductor and Integration Association, which is sold to Silicon Lab. Dr. Sherwani worked at Intel for nearly a decade, where he co-architected the Intel microprocessor design methodology and design environment used in several microprocessor and received prestigious Intel Achievement Awards, mashallah. Dr. Sherwani is a noted author, having authored several books and over 100 various articles on VLSI and ASIC. Dr. Sherwani served as a professor at Western Michigan University, where his research focused on ASICs, EDA, graph algorithms, and parallel computing. He received his PhD from University of Nebraska, Lincoln. Assalamu alaikum sir, कैसे हैं sir? Allah का शुक्र है. Thank you very much for very kind words. Thank you sir. A second जो हमारे guest हैं, which is Yasir Javed. He is actually a chief executive officer at Renzyme. He has 20 years of experience in digital hardware design, digital signal processing, and software design field. He has done bachelor from NUST, MS from UT Texla. He was design engineer at Enabling Technologies, member technical staff at Kier Private Limited, assistant professor at Iqra University, and now working in the same capacity at Abbasin University, Islamabad. He's also leading a startup called Renzyme, where he's leading FPGA development of machine learning algorithms, development for computer vision and other stuff. अस्सलाम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह जो दोनों गेस्ट हैं हमारे, इनका ताल्लुक नो डाउट पाकिस्तान से है और हमारी 75 इयर्स की इंडिपेंडेंस ऑलरेडी हो गई है. सो कुछ वर्ड्स डॉक्टर नवीद पहले आप कहना चाहेंगे इंडिपेंडेंस के बारे में. 75 इयर्स पाकिस्तान को हो गए हैं. हाउ वुड यू सी दिस थिंग? एंड देन फिर उसके बाद डॉक्टर यासिर आप बताइएगा कि व्हाट डू यू फील अबाउट इट. देखिए नवीद जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारे पास हमारा मुल्क है, हमारे पास हमारी आज़ादी है, हमारे पास हमारी इज्जत है. इस मुल्क के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए. इसलिए कि आप देख सकते हैं कि जिन लोगों के पास आज़ादी नहीं होती उनके साथ क्या होता है. हमें बहुत शुक्र करना चाहिए, हमारे पास ऐसे लीडर थे, अल्लामा इकबाल जैसे, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे, लियाकत अली खान जैसे, जिनके पास इतने फोरसाइट और विजन था कि वो वहां बैठ के देख सकते थे कि आज के 70 साल बाद क्या होगा. हमारे पास तो ये विजन नहीं है कि हम ये देख सकें कि इस हफ्ते के एंड में क्या होने जा रहा है.
अभी देखें ना, यूएस लीडर्स के पास ये विजन नहीं था, उनको ये नहीं पता था कि काबुल जो 10 दिन में फतह होने जा रहा है, वो ये कह रहे थे 90 दिन लगेंगे। ये विजन की बात है ना, पता होना चाहिए ना। हमारे लीडर्स को ये पता था कि आज से 70 साल बाद क्या होगा। हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि हमें पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी आज़ादी को मजबूत करने के लिए, उसकी तरक्की के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। प्राइवेट सिटीजन के तौर पे करना चाहिए, गवर्नमेंट के तौर पे करना चाहिए, वेल विशर्स के तौर पे करना चाहिए, डायस्पोरा की तरफ। तो मैं तो यही दुआ करता हूँ कि हम सब लोगों को अल्लाह मियां हिम्मत दे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है और फले फूले और बड़ा हो। और इसकी ये 75 तो क्या 750 ईयर्स के बाद भी पाकिस्तान एक बहुत बड़ी अच्छी रियासत हो, जो अपने लोगों के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए अच्छी हो, और उनकी हमें उनकी फलाह बहबूद का ख्याल करना चाहिए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। माशाल्लाह, थैंक यू सर फॉर द गुड वर्ड्स। सर यासिर, आप क्या कहना चाहेंगे इंडिपेंडेंस के बारे में, एंड हाउ डू यू सी इट? मैं भी मेरी मिक्स फीलिंग है दोनों तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो शुक्र की फीलिंग है कि वाकई हम आज़ाद हैं, और जो जिन मुल्कों में आज़ादी नहीं है, जहाँ पर आप बोल नहीं सकते, बोले तो कैद हो जाते हैं, जहाँ पर आप एक माइनॉरिटी होते हैं, और फिर जिस तरह हमने देखा है कि मुख्तलिफ स्टेजेस पे उनके साथ मजालिम होते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि हम उससे महफूज हैं। और मिक्स फीलिंग इसलिए है कि टू बी ऑनेस्ट आफ्टर 75 ईयर्स मुझे लगता है कि हम उस जगह पर पहुंच नहीं पाए जहां पर हमें पहुंचना चाहिए था, और देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू विच वी शैल डू इंशाल्लाह। तो हमें वो करने की ज़रूरत है कि हम करें और फिर अगले स्टेप्स लें, बिकॉज देयर इज ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो अभी मेरा ख्याल है कि हमारा बहुत कुछ करने को बाकी है जी। थैंक यू माशाल्लाह, आप सबकी आई थिंक वी आर हियर एक्चुअली फॉर, हम बात भी इसीलिए करने आए हैं कि इकोसिस्टम डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि हम सब का आई थिंक हम तीनों का जो ताल्लुक है वो इंडस्ट्री और एकेडमी दोनों से है। हम तीनों ने बेसिकली तीनों जगह सर्व किया हुआ, और डर से बात है डॉक्टर नवी शेरवानी ने जो लीड किया हुआ है बहुत सारी जगह, डॉक्टर यासिर ने ऑलरेडी अपनी कंपनी बनाई हुई है। सो दैट्स हाउ हम भी देखना चाहते हैं कि अगर हम से देखें फॉर 100 ईयर्स, अगर हम देखें पाकिस्तान कहाँ होगा, यानी कि अगर हमारे पास 75 के बाद आगे 25 साल हैं, हाउ वुड यू सी कि हम अपनी अपनी फील्ड में रहते हैं, जैसे कि हमारी फील्ड डू इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स, बिसाइड्स के गवर्नमेंट क्या करती है और बजट्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं। डॉक्टर नवीद, पहले आप बता दें पहले इसके बारे में, देन सर जावेद या जावेद आप बता दें। देखिए, मैं तो बाय प्रोफेशन एक बहुत ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, इसलिए कि अगर आप एंटरप्रेन्योर और ऑप्टिमिस्ट नहीं हो तो वो तो फिर काम बनता ही नहीं है। तो मुझे तो अगर कोई कहेगा कि आपकी कंपनी की वैल्यू है 500 मिलियन है, मुझे तो 1 बिलियन लगती है। अगर आप बोलेंगे 1 बिलियन तो मैं कहूँगा 2 बिलियन। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये समझता हूँ कि एवरीथिंग इज अहेड ऑफ अस। आई सी पाकिस्तान एज अ लैंड ऑफ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। और मेरा ये ख्याल है कि दुनिया में कुछ ऐसे वाकयात हो गए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गई है। आई थिंक आई हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट के चाइना में एक डेवलपमेंट हुई है बिकॉज ट्रेड वॉर। चाइना हैज टू नाउ डुप्लीकेट एनीथिंग बिटवीन 7,000 to 12,000 चिप्स। राइट, मैंने उसके ऊपर बेस करके ये कैलकुलेट किया, एंड मोस्ट इंडस्ट्री एनालिस्ट नाउ एग्री विद मी दैट चाइना विल नीड एनीवेयर बिटवीन 500,000 प्लस पीपल over the next 3 to 5 years in order to design those chips. वो 5 लाख कहाँ से आएंगे? वो चाइना से नहीं आ सकते। अब ये कहेंगे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। चाइना दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, और नवीद शेरवानी यहाँ पे बैठ के ये बोल रहे हैं। उसके मैं आपको एविडेंस ये देता हूँ कि मैं पिछले 4 महीने से 5 महीने से अपनी एक कंपनी है मेरी रैपिड सिलिकॉन, उसके लिए मैं एक बंदा हायर करने की कोशिश कर रहा हूँ शंघाई में बैठ के। अभी तक एक भी हायर नहीं हुआ। एक जो हायर हुआ वो भी पाकिस्तानी है, उसका नाम मुस्तफ़ा अब्दुल। वो एक्चुअली एक पाकिस्तानी यहाँ रहता है, उसको हमने हायर किया। हमने लाहौर में बंदे हायर किए, हमने पेरिस में बंदे हायर किए, हमने अमेरिका में हायर किए। वजह यहाँ पे ये है कि जो कि पॉलिसीज की हुई तो वो वावे टूट गई, उसे बहुत सारे स्टार्टअप बन गए, कितने 100 स्टार्टअप बन गए। वो सब के सब हायर कर रहे हैं। कहाँ से हायर करेंगे? इसी जगह से हायर करेंगे। तो एज अ रिजल्ट एक जो बहुत बड़ी बात ये हो रही है वो ये हो रही है कि चाइना को बहुत ज्यादा हेडकाउंट की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये ख्याल है
कि ओपन सोर्स एक ऐसी मूवमेंट है, वो एक बहुत सारे बैरियर हटा रही है हमारे सामने से, जो कि हमारे पास थे। हमारे आईपी की एक्सेस नहीं थी, हमारे पास टूल्स नहीं थे, हमारे पास इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नहीं थे, हम आइसोलेटेड थे। ओपन सोर्स उसको हॉल कर देती है। तीसरा, ऑनलाइन एजुकेशन जो है, कोर्सेज, मटेरियल, अब दे आर अवेलेबल। और 4, गिग इकोनॉमी, jobs are no longer tied to a geographic location. Is it possible, अगर हम सक्सेसफुली चिप डिजाइन को डिसएग्रीगेट कर लें, छोटे उसके पीसीज जो हैं वो अपने बच्चों को सिखा दें, हमारे लड़की और लड़कियां जो सॉफ्टवेयर में $2 बिलियन ला रहे हैं, वो $1 बिलियन चिप डिजाइन में भी ला सकते हैं। तो अगर इन 4 चीजों को आप जोड़ें, तो मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ। हमारे पास जिस किस्म के लोग हैं, हमारे पास जिस किस्म की यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे पास जिस किस्म के प्रोफेसर हैं, और जिस किस्म के हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, I don't see any reason why we cannot be one of the leading players in providing chip design services worldwide. तो मुझे तो ये डेफिनेटली लगता है कि अगले 25 साल के अंदर पाकिस्तान कैन बिकम one of the top chip design destinations in the world, and इंशाल्लाह हम वो करेंगे, और पाकिस्तान के अंदर हम रेवेन्यू भी लाएंगे, जॉब्स भी बच्चों की क्रिएट होंगी, हम अपने मैन पावर को भी एक्सपोर्ट करेंगे, वो चाइना जाके काम करें और दुनिया में जाके काम करें, वहां से भी रिसोर्स, वहां से भी फिर रेवेन्यू आएगा। So I think I see that an extremely positive situation for Pakistan. Lot of things are happening which play to our strength. Ground reality में difficulties होती हैं, लेकिन जिस तरह कायदे आजम ने और इल्लामा इकबाल ने भी 70 साल आगे देखा था, हमें भी 25 साल आगे देख के मेहनत करनी है और उस विजन के लिए वर्क करना है। अगर हम ये बातें आपस में करना शुरू, अच्छा वो नवीद भाई आप तो आगे की बात कर रहे हैं, कल की मेरी ये प्रॉब्लम है और ये, वो सब हैं, मुझे भी है, आपको भी, सबको है। But our greatest opportunity lies ahead of us because all the things that I talked about. So I am very positive, inshallah, in 25 years, we can create a very vibrant, very dynamic, very energetic, and very profitable industry in Pakistan, which would be good for Pakistan and for the people it will employ in Pakistan and its customers worldwide. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। और ऑल्दो ओपन सोर्स डेवलपमेंट ने बहुत सारे बैरियर्स जो हैं वो खोल दिए हैं, और now students actually from 3rd semester, 4th semester are trying to taping out their design. So it's a wonderful from you guys in the industry जिन्होंने इतनी मेहनत की है इस काम के लिए, so सबके लिए applause। यासिर साहब आप बताइएगा कि how would you see after 25 years के हम कहाँ पे पहुंचे होंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। so $500 बिलियन की अभी इसकी मार्केट है वर्ल्ड वाइड, एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान शेयर नहीं करता तो ये हैंडसम अमाउंट इसमें। so what do you see? जी, मैं बहुत लॉन्ग रेंज में तो नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि आई थिंक फ्यूचर में बहुत सारी एंडलेस पॉसिबिलिटीज होती हैं और इट डिपेंड्स कि आप कौन सा पाथ ट्रेड करते हैं उसके ऊपर। लेकिन वो जो मैं जिस तरह स्पोर्ट्स को फॉलो करता हूँ, तो पिछले टेनिस में आपने कभी नदाल का मैच देखा हो तो आपको लग रहा होता है कि यार ये जो है ना बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन में होता है, लेकिन वो हर बॉल को रिटर्न करता रहता है, थोड़ी देर बाद जो है ना उसका पॉइंट हो जाता है और वो जीत जाता है। ठीक है, तो मैंने उससे एक चीज ये सीखी कि जिंदगी को ना पॉइंट बाय पॉइंट, बॉल बाय बॉल खेलना चाहिए, आवर बाय आवर, डे बाय डे। वो आप अगर इफ यू टेक केयर ऑफ द मिनट्स, द आवर्स विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो हमें बेसिकली जो हमारे एक्शन आइटम्स हैं वो ठीक ठीक होते कुछ नज़र आ रही हैं, यानी कि ये जो सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से ये जो कनेक्टिविटी बनी है और उनमें कुछ सिनर्जीज डेवलप हो रही हैं, जिस तरह ये टॉक इटसेल्फ उसका एक सबूत है कि जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स मिलकर एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये कनेक्शंस ही मेरा ख्याल है पिछले कुछ अरसे में एक मिसिंग लिंक थे, जो कि अब वो मिसिंग लिंक पूरा हो गया है और उसमें चीज़ें इस तरह से फॉलो अप करती मुझे नज़र आ रही हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो हमने देखा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके रेवेन्यूज ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि चिप डिज़ाइन में भी ग्रो करेंगे, स्पेशली फ्रंट एंड चिप डिज़ाइन जो है वो ईजी टू है एंटर, और वेरिफिकेशन इज एन रिलेटिवली ईजियर थिंग टू एंटर। मेरा ख्याल है वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे गाड़ के ना आप उसमें प्रूव योर सेल्फ इन डिज़ाइन एज वेल। और अपनी चिप्स जो है अपनी फैब कब कोई लगेगी वो शायद थोड़ा आगे हो, लेकिन शायद उसकी ज़रूरत ना हो, यानी कि आप उसके बगैर भी यू कैन डू ग्रेट थिंग्स, बट इन द लॉन्ग रन इट शुड बी देयर।
थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आप दोनों की बात से। डॉक्टर नवीद, आपसे मेरा सवाल है कि कंपनी क्रिएट करना बड़ा एक मुश्किल काम होता है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हों, राइट? सो फर्ज करें एक बच्चा है जो अभी थर्ड सेमेस्टर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है और उसको अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। क्या वो उस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को कंपनी में तब्दील कर सकता है? यानी इसकी कोई कोई एग्जांपल है? बात हो रही है तेरे साथ। सो इज इट पॉसिबल कि कोई हो सकता है? या फिर आप अपने बारे में बताइए कि आपने पहली कंपनी कब स्टार्ट की है, या स्टूडेंट लाइफ में स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की, और हाउ वुड यू प्रोग्रेस इन दैट? देखिए जी, मेरी तो जो पहली कंपनी थी ना वो टेक्निकल कंपनी नहीं थी। हमने तो जो कंपनी स्टार्ट की थी वो हमने जब हम एनईडी में एडमिशन ले रहे थे तो हमने उस वक्त स्टार्ट की थी। वो इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं कि वो उनका एडमिशन नहीं हुआ एनईडी में, कुछ कोटा सिस्टम होता है, ये है वो है। तो बस उससे मुझे ये आइडिया आया कि अगर हम कोई ऐसा प्रेप कॉलेज बनाएं जो कि लोगों की हेल्प करे टू गेट इनटू एनईडी, इट माइट बी ऑफ सम वैल्यू। उससे हमने एक चीज़ बनाई जिसका नाम है कोचिंग सेंटर। उससे पहले पाकिस्तान में कोई कोचिंग सेंटर नहीं होता था, वो उसको ट्यूशन सेंटर वगैरह कहते थे, एंड दे यूज्ड टू टीच क्लासेस। हमने ये नहीं किया, हमने कहा कि ऐसे बच्चों को लो जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे हों और उनको टीच करो एग्जाम टेकिंग स्किल्स, नॉट एक्चुअली द कंटेंट बट टीचिंग स्किल्स, एंड देन समहाउ गेट देम इनटू एनईडी, राइट? तो ओवर टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वो एक 11 एम्प्लॉइज थे मेरे पास। वी हैड 225 स्टूडेंट्स इन अबाउट 4 years। तो थ्रू आउट जब मैं एनईडी में खुद भी पढ़ रहा था और माशाल्लाह से हमने बहुत पैसे कमाए। आई मीन वी पेड फॉर आवर टिकट्स टू गो टू यूएस। I bought a car for myself as a 19-year-old. I was probably the only person in Karachi who owned a car who paid for himself. मैंने 25,000 रुपए की एक Peugeot 504 खरीदी थी जो कि 1959 की थी। हमने उसको लेकिन वो एक टेक्निकल स्टार्टअप नहीं था। That was a startup which was based on the things I knew. मैं 8वीं जमात से ट्यूशन पढ़ाता था, तो मैंने 8वीं 9वीं 10वीं तो 4-5 साल का मुझे एक्सपीरियंस था। मैं एक्चुअली ये रिकमेंड नहीं करता कि लोग कॉलेज से डायरेक्ट स्टार्टअप्स करें। मैं ये कहता हूं कि स्टार्टअप करने के लिए बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि एमआरडी कैसे लिखनी है, आपको पता है पीआरडी कैसे लिखनी है, आपको पता है बैलेंस शीट, आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता है बैलेंस शीट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, आपको कैश फ्लोज पता होने चाहिए, आपको एक बिजनेस प्लान आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऑपरेशन प्लान कैसे बनाते हैं, राइट? आपको पता होना चाहिए कस्टमर्स कैसे एक्वायर करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए पैसे कैसे रेज करने होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड कैसे मैनेज करते हैं। तो मैंने अपनी जिंदगी में एक 15 स्किल्स की लिस्ट बनाई हुई है जो कि हर आदमी जो कोई स्टार्ट करने का ख्वाब देखता है वो करे। अनफॉर्चुनेटली 15 की 15 स्किल कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाती। यूनिवर्सिटी से समझती नहीं है कि ये उनका काम है कि वो 15 स्किल्स पढ़ाएं, तो वो छोड़ देते हैं on people to either acquire themselves or the company that they join। ठीक है ना? आप बताएं ना, कोई एनईडी के अंदर या आसमान इंस्टीट्यूट के अंदर कोई ऐसी क्लास है जिसमें आप बताते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है या इनकम स्टेटमेंट कैसे लिखनी होती है, या आप उनको ये बताते हैं कि कस्टमर एक्वायर करने का मेथड क्या होता है, या आप ये बताते हैं कि फंड रेजिंग करने का क्या तरीका है। मैं ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा उस्मान इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी को, मैं सारी यूनिवर्सिटियों के बारे में ये कह रहा हूँ, इसलिए कि प्रोफेसर ये नहीं समझते कि उनका ये काम है, राइट? और नहीं भी होगा शायद, लेकिन मेरा कहना है कि इसके बगैर अगर आप स्टार्टअप करेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ, ये मेरी रिकमेंड, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले किसी, या तो जब आप स्टूडेंट हो आपको बड़ा शौक है, आप और स्टार्टअप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उनमें सीख सकते हैं, आप फ्री में काम करें, और स्टार्टअप्स में आप दूसरी कंपनियों को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में काम करें। मकसद आपका पैसे कमाना नहीं है, आपका मकसद है वो 15 स्किल्स हासिल करना। अब वो बहुत तरीके से, जब वो आपके पास वो 15 स्किल्स आ जाएं बिटवीन यू एंड योर को-फाउंडर्स, देन यू कैन स्टार्ट अ कंपनी। उससे पहले आप अपने ऊपर एक ऐसी मुसीबत ले रहे हैं जिसके अंदर आप अपने लिए भी मुश्किल क्रिएट करेंगे, आपके जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं। और एक मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि प्लीज खुदा के लिए दुनिया को बेहतर करना और स्टार्टअप के अंदर बहुत फर्क होता है। तो ये जो कुछ यंग बच्चों में ये होता है कि मैं ऐसे करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं यूनिवर्सिटी से निकलूंगा, पूरी दुनिया को मैं बेहतर करूंगा और मैं स्टार्टअप करूंगा, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जो स्टार्टअप होता है ना, उसका मकसद होता है अपने सारे स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना, आपके इन्वेस्टर्स के लिए, आपके एम्प्लॉयज के लिए और आपके कस्टमर्स के लिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं ना तो आप गलत कर रहे हैं। आपने अगर दुनिया को बेहतर करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए स्टार्टअप ना करें, किसी का पैसा ना लें, बेचारे अपने एम्प्लॉयज को हायर ना करें।
right? Because they probably don't want to improve the world. They're just trying to find a situation where they can make some money, right? तो ये मेरा मशवरा ये होगा कि पहले लोग थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल करें, वो स्किल्स हासिल करें और फिर स्टार्टअप में जाएं। थैंक यू। आई थिंक बहुत अच्छी एडवाइस है सारे यंग बच्चों के लिए। सो आपका कहने का मकसद बेसिकली ये है कि सर्विस सेक्टर में भी कोई स्टार्टअप किया जा सकता है, जैसे कि कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर्स, या ये बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं, बट फॉर द टेक्निकल पर्सपेक्टिव या टू टेक कोई वेंचर है तो उसके लिए यू शुड एक्चुअली हैव टू लर्न सम स्किल्स, राइट? सर यासिर, आप बताइएगा कि आपका भी एकेडमी से ताल्लुक था, तो कैसे आप एकेडमी से इंडस्ट्री में आए और वो क्या चीज थी जिसकी वजह से आपने देखा कि देयर इज अ गैप इन इंडस्ट्री सो दैट आई कैन फिल इट? मैं एक्चुअली एकेडेमिया से नहीं आया इंडस्ट्री में, मैं कह लें कि इंडस्ट्री से ही इंडस्ट्री में आया और साथ एकेडेमिया भी ज्वाइन कर ली। एक्चुअली हम 3 दोस्त थे जो कि केयर में काम करते थे और यही कह लें कि टेक्निकल किस्म के, और हम शाम की चाय इकट्ठे पीते होते थे। तो शाम की चाय जो इकट्ठे हम पीते थे, हमारी एक्सपर्टीज थोड़ी थोड़ी फर्क थी, यानी कि एक एल्गोरिदम्स का एक्सपर्ट था, मैं एफपीजे साइड का था, और एक तीसरे जो हमारे थे वो एम्बेडेड डेवलपमेंट के काफ़ी एक्सपर्ट थे। तो वो उसी चाय पीते पीते जो है ना, हम लोगों ने ये सोचा कि यार इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, 7-8 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो वाई नॉट कंपनी स्टार्ट कर दें, और बजाय ये कि एक दूसरी कंपनी के लिए उतनी एफर्ट पुट करें, वाई नॉट हम खुद उसको करके देखें और फिर देखें वो कैसी जाती है। तो एक आध और दोस्त को साथ मिलाया जो पीसीबी साइड का एक्सपर्ट था, तो हमें लगा कि ये ना पूरा कैनवस कवर हो गया, यानी कि एल्गोरिदम से लेकर उसकी फैब्रिकेशन तक जो है ना हम पूरा काम कर लेंगे। तो हमने बिस्मिल्लाह की। हम लोगों का कोई उस तरह का, जैसा कि नबी साहब ने बताया, कि कोई नॉलेज नहीं था कि फंड रेजिंग कैसे करनी है। हमने बस सोचा था कंपनी बनानी है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली हमें वो वीसीज और उनका आइडिया नहीं था, तो अब किसी तरह सरवाइव करना था। तो हमने हमारे जहन में ये आया कि यार एकेडेमिया ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपने बस 2-3 कोर्स पढ़ाने होते हैं और बाकी का टाइम आपके पास फारिग है। तो हमने इसलिए एकेडेमिया मैंने ज्वाइन किया, टू बी ऑनेस्ट। और लकीली उन दिनों हमें इकरा यूनिवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, और दे वर लुकिंग फॉर फैकल्टी, और उन्हें 2-3 लोग ही हायर करने थे। और वहाँ पे डॉक्टर इस्माइल शाह होते थे, डॉक्टर जमील होते थे, दे न्यू अस, और उन्हें पता था कि बंदे ठीक कॉम्पिटेंट बंदे ही हैं, तो इनको रख लें तो अच्छा ही होगा स्टूडेंट्स के लिए। तो उन्होंने हमें हायर कर लिया, और वहाँ से फिर हमने कंपनी की शुरुआत की। तो एकेडेमिया वाज काइंड ऑफ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कंपनी, ताकि हमारा किचन चलता रहे, और वो फिर चलता रहा, और अल्लाह का शुक्र है कि वो हमें किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ा थ्रू आउट, उसकी वजह से। दूसरा जो आपका था कि सवाल के क्या स्टूडेंट्स को शुरू कर देनी चाहिए, तो मैं उसमें टोटली एग्री करता हूँ नवीद साहब से। मैं एटलीस्ट जितने स्टूडेंट्स मैंने इधर देखे हैं उनमें बहुत कम परसेंटेज, एक्चुअली ये जो मिसकंसेप्शन है ये वहां से निकली हुई है कि क्योंकि आपने सुना होता है कि भाई जकरबर्ग भी ड्रॉप आउट था और बिल गेट्स भी ड्रॉप आउट था एंड एवरीथिंग। जो ड्रॉप आउट जिन्होंने कंपनियां बनाई हैं, दे वर ऑल गीक्स, दे वर प्रोग्रामिंग एट 9th-10th के लेवल से वो प्रोग्रामिंग कर रहे थे, जबकि कंप्यूटर भी नहीं होते थे हर जगह पे, ठीक है। तो अगर तो आप वो कैटेगरी में हैं तो फिर तो जरूर आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। बट अगर आप उस कैटेगरी में नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने देखा नहीं है, देन यू हैव टू लर्न थिंग्स। और जो इन्होंने लिस्ट बनाई हुई है 15 की, मेरा ख्याल है इट्स प्योर गोल्ड अगर उन्होंने वो बनाई हुई है। आई थिंक इट इज़ राइट टाइम कि हम, अगर यूनिवर्सिटियाँ नहीं पढ़ाती तो हम उसके लिए कुछ ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर दें, कि हम वो 15 स्किल्स को ट्रेन करने के लिए मे बी 2-2, 3-3 घंटे की कुछ सेशंस रख लें, और दैट विल बी प्योर गोल्ड फॉर यंगस्टर्स। अच्छा यासिर भाई, अब बस एक सवाल मुझे इसमें ऐड करना था। जो आपका पहले क्लाइंट थे फॉर योर कंपनी, मतलब वो कंपनी बनने से पहले नहीं थे, कंपनी बनने के बाद, जैसा आपने बताया। तो कितना टाइम लगा आपको पहले क्लाइंट तक पहुंचने में और सेल्स क्लोज करने में? लकीली हमें जल्दी मिल गए। वी वर थिंकिंग कि यार पढ़ाना शुरू करते हैं, और साथ उस वक्त अभी अपवर्क नहीं थी, ईलांस इसको शायद बोलते थे, तो हमारा ख्याल था कि हम इसके ऊपर प्रोफाइल बनाएंगे और प्रोजेक्ट्स हंट करेंगे।
लेकिन हमने जब अपने सर्कल में ही देखा, तो जब 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपका इतना सर्कल बन गया होता है कि आप डिग करें ना तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकलने का चांस होता है। बाकी कुछ लक भी थी कि हमें अर्ली ऑन ही काइंड ऑफ 2 प्रोजेक्ट मिल गए। एक जो था वो रडार से रिलेटेड था, और एक और जो था वो कह लें कि एक इग्नाइट फंडेड प्रोजेक्ट था जो कि एकरा यूनिवर्सिटी को मिला हुआ था। तो कुछ टीम हमारी जो है ना उसमें बिजी होगी, तो हमें शुरू से वो कैश फ्लो का चक्कर नहीं पड़ा, और फिर हम उनमें उनको डेवलप करते रहे। दैट्स ग्रेट। सो डॉक्टर नवीद, आपने माशाल्लाह 11 कंपनीज बनाई हैं, जाहिर सी बात है, और तकरीबन उसकी जो कंबाइंड मार्केट वैल्यूएशन है वो $3 बिलियन है। सो आपने कैसे मैनेज की ये सारी सक्सेस इन सिलिकॉन वैली? मतलब हाउ, मतलब जाहिर सी बात है आपका एक एक्सपीरियंस था, आप एकेडमी में पढ़ाते भी थे, तो उसको बताएं कैसे ब्रिज किया गैप, और वो हाउ वुड यू वर्क ऑन बोथ दिस थिंग, एकेडमिया भी और इंडस्ट्री भी? मैं एक्चुअली मुझे अभी यासिर की बात बहुत अच्छी लगी कि बहुत उन्होंने ऑनेस्टली बताया कि वो एकेडमी में क्यों गए। मैं एक्चुअली आई एम एंटरप्रेन्योर फर्स्ट। मुझे एकेडमी में कुछ आता है या नहीं आता मुझे नहीं पता एक्चुअली, लेकिन मैं वहाँ ऐसे पहुँचा कि ड्यूरिंग पीएचडी मैं एक फेज से गुजरा कि मैं दुनिया को चेंज करना चाहता था। मैं उसे कहता हूँ ट्री हगिंग पिंको फेज ऑफ माई लाइफ। मैंने ये डिसाइड किया कि आई वॉन्ट टू गो एंड चेंज द वर्ल्ड। एक्चुअली आई बिकेम प्रोफेसर बिकॉज ऑफ दैट। आई नेवर टुक एन RA. I always was a teaching assistant, and I wanted to change the world. And actually, that's why I went to Western Michigan University. I didn't want to do any research. I actually wanted to teach. और मैंने वहां पे यूनिवर्सिटी की जब कंपनी बनाई वो एक EDA कंपनी थी, और उसका वाहिद मकसद था कि EDA टूल्स को फ्री कर दो। अब ये सोचें जरा, कंपनी का आइडिया सोचें कि मैंने एक कंपनी बनाई जिसका मकसद है कि EDA टूल्स को फ्री कर दो। समझ रहे हैं ना आप? तो मैंने भी इस तरह की जो मैं दूसरों को मशवरे दे रहा हूँ ना, इसलिए दे रहा हूँ कि मैं इन चीजों से गुजर चुका हूँ। तो मुझे एक बंदा मिला, बॉब हार्डन। तो मैंने उसे कहा कि भाई ये करना है। तो बॉब हार्डन एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था मेट्रोला का। he has made lot of money by actually installing cell towers all over Africa. He made lot of money doing that in 60s and 70s when cell phones were not invented. तो उसने मुझे वो पहला बंदा था जिसने मुझे सिखाया कि भाई एक चीज होती है जिसे कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। मैंने कहा अच्छा, ये तो अच्छी चीज होती है। ये क्या होती है? ये इसमें लिखा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने कहा प्रॉफिट कैसे होगा, वो तो हम फ्री में देंगे। तो कहने का फिर कंपनी कैसे बनेगी? अच्छा, उसने मुझे सिखाया। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि ये जो मेरा आइडिया है ना कि मैं दुनिया चेंज करना चाहता हूँ, इसका एंटरप्रेन्योरशिप से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, तो बॉब हार्डन ने मुझे काफी सिखाया। उसने ही मेरे उस कंपनी में पैसे डाले। ठीक है ना? तो और एक्चुअली वी थोड़े से हमने वो कंपनी बनाई। वो फिर हमने इवेंचुअली AT&T को हमने कंपनी सेल कर दी थी। इट वाज अ स्मॉल एग्जिट। मैंने फाइनली फिर इंटेल में जाके मैंने बहुत सीखा। मैं इंटेल में गया तो मुझे पता चला मुझे क्या नहीं आता। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं इंटेल गया, मैंने 1 हफ्ते बाद वहां गया। मुझे एंडी ग्रोव ने हायर किया था। उसका ख्याल था कि मैं इंटेल की सारी चीजों को चेंज कर सकता हूँ, वहां पे सारी डिजाइन फ्लो। मुझे 1 हफ्ते बाद पता चला मुझे कख भी नहीं आता। जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, कख भी नहीं आता मुझे कुछ। मैंने 1 हफ्ते बाद जाके अपने सारी टीम, इतनी बड़ी मुझे टीम दे दी। मैंने कहा यार मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये तो आप इतने कॉम्प्लेक्स किस्म के काम करें। मैं तो छोटे छोटे एकेडमी में छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने चिप्स बनाया करता था। मैंने बुक लिख ली। मेरी बुक की अच्छी बात है कि उसमें क्लैरिटी है, सिंप्लिसिटी है, दुनिया इस्तेमाल करती है, वो ठीक है, लेकिन इससे कोई ताल्लुक नहीं है जो कि आप ये काम कर रहे हैं। उन्होंने पता है क्या कहा? कहेंगे हमें पहले दिन से पता चल गया था आपका आता कुछ नहीं है। ये मेरी पूरी टीम ने कहा। हम ये देखना चाहते थे अब कितने दिन लगेंगे आपको हमें ये कहने के लिए। मैंने कहा यार एक पार्टनरशिप करते हैं, तुम मुझे सिखाओ कि तुम लोग क्या काम करते हो। मेरे में ना एक क्लैरिटी है एट द हायर लेवल। कहेंगे वो हमें नजर आ गई थी। यू हैव विजन, यू हैव क्लैरिटी। हम बहुत छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं। इस तरह मैंने अपने उन लोगों से काम शुरू किया। मैंने उनसे बहुत सीखा। इंटेल की एक और अच्छी बात थी, इंटेल में एक चीज थी, इंटेल यूनिवर्सिटी। कोई क्लास लेनी है वो आपके पैसे देते। अगर क्लास इंटेल में अवेलेबल नहीं है वो आपके पैसे दे देते ट्यूशन, जाके आप कोलंबिया में, हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में क्लास अटेंड करें। मैंने उसको बेतहाशा इस्तेमाल करके वो मैंने 15 स्किल्स की जो लिस्ट बनाई हुई है ना, वो मैंने वहां सीखी। मुझे आना चाहिए ये, ठीक है ना? तो जब मैं इंटेल में मैंने अपनी पहली कंपनी बनाई, उसमें भी मेरे सेफ्टी नेट था। मैं इंटेल में रह के मैंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था इंटेल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। वो भी आसान हो गया। जब मैं इंटेल से बाहर आया तो फिर मुझे एहसास हुआ एक और, मैं कुछ भी नहीं हूँ, टीम सब कुछ है। उसके बाद से मैंने ये फोकस किया कोई भी कंपनी हो सबसे पहले टीम लाओ बड़ी जबरदस्त किस्म की।
और मैंने 100% रिलाई किया है कि मेरी टीम्स ऐसी हो जो मुझसे ज्यादा जानती हो, मुझसे ज्यादा केपेबल हो और मुझसे ज्यादा मेहनती हो। अगर आपकी टीम में ये बात हो ना, फिर आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने इतनी कंपनियां सिर्फ इसलिए मैनेज की हैं और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेकिन वरना मैं क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। लेकिन जो माशाल्लाह से मुझे बस चलता गया, अच्छे अच्छे लोग मिलते गए, टीमें बनती गई और कंपनियां चलती गई। तो मेरे ख्याल से मैजिक इसमें यह है कि सराउंड योरसेल्फ विद हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट पीपल, enable them, don't micromanage them, remove obstacles from their path। वो आपको सरप्राइज करेंगे। आप अगर वो सोचती हैं आप 10 करेंगे, वो आपको 100 करके दिखाएंगे। ये मैं समझता हूँ, दैट इज हाउ यू कैन डू। दिस इज माय ओपिनियन। माशाल्लाह, आई थिंक गोल्ड वर्ड्स हैं ये। अच्छा, वो बिल्कुल हम आपसे बिल्कुल कहेंगे, वो 15 जो लिस्ट है जो आपने 15 मैं भेजने लगा हूँ, मैं भेज ही रहा था। मैं आई जस्ट लॉग्ड इन, मैं चैट में भेज देता हूँ। आई जस्ट डू इट। जो भी हमारे लिए गोल्ड की तरह होंगे। अब इसी से मिलता जुलता जवाब सवाल है मेरा सर यासिर से भी। सो सर यासिर, देखें चैट में भी एक सवाल आया है, और आपको पता ही है कि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पाकिस्तान में जो सप्लाई डिमांड है उसका एक इशू आ रहा है। सो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इश्यूज हैं वो। सो हाउ वुड यू सी, क्या इंडस्ट्री एकेडमी में गैप है, और हम क्यों नहीं जो बाहर की मार्केट है उसको टच करते? व्हाई नॉट वी ओनली रिलाई ऑन पाकिस्तानी लोकल मार्केट? सो इसके बारे में बताइएगा, क्या इंडस्ट्री एकेडमी में गैप है और उसको कैसे रिजॉल्व कर सकती है जो फैकल्टी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की खास तौर पर? जी, एक्चुअली जो गैप आया है उसमें मेरा अंदाज़ा ये है कि हमारे ज़माने में ना 4-5 यूनिवर्सिटीज़ होती थी जहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते थे। अब बहुत सारी जगहों पर करवाना शुरू हो गई हैं आप, यानी कि हर मोहल्ले में यूनिवर्सिटी है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करा रही है। तो एक्चुअली ये वाला जो गैप आया है, ये जो जिसकी वजह से अभी हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचेस पूरे नहीं हो रहे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, उसकी वजह यही मुझे लगती है कि वो इतने ज़्यादा खुल गए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करवाने वाले कि उतनी उसकी डिमांड नहीं थी इन स्टूडेंट्स में। फिर उसकी वजह से क्या सेकंड इफेक्ट उसका ये आया है कि ऑब्वियसली पीसी का क्राइटेरिया जो होता है कि 65% या 60% तक आपके मिनिमम मार्क्स का, तो आपने सीटें पूरी करनी है तो आप अपने एंट्री टेस्ट का लेवल गिरा कर और किसी ना किसी तरह जितने बच्चे आते हैं वो रख लेती हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ। उससे जो फिर क्वालिटी गिरी है ना थोड़ी सी, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है जो कि जिसकी वजह से मेरा ख्याल में इश्यूज कुछ आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ ना 2 ग्रुप्स बन गए हैं, यानी कि एक ये है जो बहुत ही अच्छे कॉम्पिटेंट किस्म के लोग हैं जिसकी काफ़ी सारे जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ के हैं, और जो सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटीज़ के टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इसी तरह हैं। ठीक है, अच्छा, उसका थर्ड इफेक्ट ये हुआ है कि जब यूनिवर्सिटीज की सीटें पूरी नहीं हो रही होती तो फिर यूनिवर्सिटीज वो कॉस्ट कटिंग पे आती हैं। ठीक है, तो कई दफा उन्होंने इस तरह के लोग हायर कर लिए हैं कि जो मतलब पाकिस्तान ऐसी जगह है कि जहाँ पर ना आप ये भी कह देते हैं कि बाज़ आपको जॉब नहीं मिल रही, इस वजह से आप मास्टर्स पीएचडी कर लेते हैं। ठीक है, तो और उसकी वजह से फिर जो लोग होते हैं ना वो आपको कम पैसों में हायर हो जाते हैं। ठीक है, और वो फिर जब हायर होते हैं तो वो क्वालिटी नहीं दे पाते क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री में टाइम नहीं गुजारा होता। ठीक है, तो जिन्होंने इंडस्ट्री में टाइम गुजारा होता है और जिन्होंने नहीं गुजारा होता वो फिर ना बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं। जिसने बिल्कुल ही बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स किया, फिर पीएचडी कर ली, ठीक है, और उसमें उसने कोई वो इंडस्ट्री इन्वायरमेंट में चंद साल नहीं गुजारे हुए थे, तो वो नहीं समझ सकता इंडस्ट्री इन्वायरमेंट को। ठीक है, एक थर्ड मसला जो इसके साथ मेरा ख्याल इकट्ठा हो गया वो ये कि नॉलेज की जो ग्रोथ की स्पीड है ना वो भी एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो अब टूल्स इतना तेजी से चेंज होते हैं। ठीक है, और हमारी जो इंजीनियरिंग काउंसिल और उनके जो कह लेंगे रिवाइज करिकुलम निकलने की स्पीड है वो थोड़ा सी स्लो है। ठीक है, वो और उसमें पुराने लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, उस ऑन टॉप ऑफ दैट एक थर्ड मिसकंसेप्शन ये आ गई कि उसमें पुराने कुछ लोग हैं जो कि अक्सर, यानी कि आप पीसी के विजिट्स में आए वो कहते हैं जी आपके पास जो है ना पावर के कोर्स कम है, इनको डाल दें, या किसी ऐसी फील्ड के। का मसला ये है कि पावर इंजीनियरिंग के जब आप कोर्स ज्यादा डालते हैं पाकिस्तान में जॉब्स ही नहीं है उसकी। ठीक है, तो और बच्चों को ना ये कि सेफ राउट लगता है कि यार प्रोग्रामिंग वगैरह से बच के हम पावर इंजीनियरिंग वगैरह कर लें तो ये काफी होगा। ठीक है, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि देयर इज अ गैप के ना लोगों ने ये रियलाइज नहीं किया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जितनी भी एप्लीकेशंस थी वो सब की सब सॉफ्टवेयर डिफाइंड होती जा रही। ठीक है, हर चीज में कोई ना कोई कंप्यूटर लगा है, कोई एसओसी लगा है, कोई ऐसी चीज लगी है।
तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस है ना, ये मेरे ख्याल में तो ये मतलब एक तरह की मिलती जुलती बिल्कुल फील्ड्स है, ठीक है, और इनमें बहुत बड़ा कंटेंट का ओवरलैप होना चाहिए, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल में थोड़ा फर्दर बढ़ाना चाहिए, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल अक्सर जगहों पे इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं पढ़ते, ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं पढ़ते, ठीक है, और मेरे ख्याल में इंडस्ट्री में एक जो नए जितने भी मेरे जो 90% प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त जो एफपीजीएस पे हम करते हैं, उनमें हम कोशिश करते हैं कि कोई जो नए एफपीजीएस हैं जिसके अंदर प्रोसेसर लगे हुए हैं, जो जिंक जाइलिंक्स के हैं या इंटेल के हैं, दोनों में आर्म की कोर लगी हुई है, आप आर्म की कोर पे सॉफ्टवेयर कैसा चलाते हैं, और मतलब बहुत अच्छी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्टीशन आपको मिल जाती है कि और उससे ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम बड़ा कम हो जाता है। लेकिन अब ये वाली जो चीज़ है, ये एक बंदा जिसने सिर्फ एकेडमिक चीज़ पढ़ी थी ना, वो शायद नहीं कर पाता, और उसमें भी लोगों में थोड़ी सी लेथार्जी इस चीज़ की भी है कि जो टूल वो यूज़ कर रहे थे हमने वही पढ़ाने, तो वो जो एक उनका वो इंसेंटिव है ना कि नए टूल सीखें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ना एक तो पीसी का रोल भी है कि थोड़ी सी फ्रीडम होनी चाहिए, इन ऑफरिंग इलेक्टिव्स थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर और जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेस कोर्सेज हैं, मेरे ख्याल में ये बड़े इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जो कि एक एम्बेडेड डेवलपर बनाएंगे, और हर जगह पे अब एम्बेडेड डिवाइसेस लग रही हैं, वो भी मेरे ख्याल में करिकुलम का पार्ट होने चाहिए। तो वो होंगे तो शायद ये कुछ गैप फिल होगा। बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल मैं इसमें बस एक दो चीजें ऐड करूंगा जो मुझे लगती थी इसके अंदर। एक हमारी ये जो है कंपार्टमेंटाइज्ड लर्निंग है कि बस डीएलडी पढ़ा दिए तो डिजिटल लॉजिक डिजाइन हो गई, और जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होगा उसका लिंक नहीं बनेगा उसके साथ, सेम यही आगे जाके एम्बेडेड सिस्टम के साथ लिंक नहीं बनेगा। तो क्या होता है, बच्चे जो है वो ना 3 में होते हैं ना 13 में, एक जगह वो आम पढ़ रहे होते हैं, दूसरी जगह कुछ और पढ़ रहे होते हैं, तो वो जाहिर सी बात है हर प्रोफेसर का अपना कंफर्ट जोन है जो आप बता रहे थे, सो उसकी वजह से ये इशू है। तो आई थिंक ये ओबीई में एक है प्रोग्राम लर्निंग आउटकम पीएलओ, तो आई थिंक इसको अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, आपको पता है हर चीज डिफरेंट राउट के थ्रू यूज हो जाती है, उसको उस पर काम किया जाए तो आई थिंक एट द एंड आपके पास बच्चा ऐसा प्रोडक्ट में निकलेगा अगर आपके करिकुलम से ही कि ऐसे निकलेगा कि वो फॉरन ही हायर हो सकता है। क्योंकि अभी आप लिंक्डइन पे रिमोट जॉब्स देखें फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर एम्बेडेड एप्लीकेशन, बहुत सारी हैं और आप पाकिस्तान में रह के कर सकते हैं काम, बट स्टिल क्योंकि वो बच्चों का कैलिबर नहीं होता जैसा आप बता रहे हैं, उसकी वजह बहुत सारी जो आपने इसमें एग्जांपल्स दी। सो आई थिंक वो एक गैप है, अगर हम उसको भी करिकुलम में ही किसी तरीके से यूज करने पीएलओ को यूज करते हुए, आई थिंक वी कैन अचीव दैट एज वेल। जी मैं इसमें दो हाई लेवल बातें ऐड करना चाहूँगा सर। एक मेरा ये ख्याल है, जब मैं एनईटी से करके अमेरिका पहुंचा तो मुझे पता चला, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं एनईटी का एक पोजीशन होल्डर था, आई थिंक आई वाज प्रोबब्ली नंबर 1 और नंबर 2 थ्रू आउट, और जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है यार, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। मैथ की एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो टीचर कोई सवाल पूछ रहा है डिफरेंशियल इंटीग्रल्स का, हमने तो 8 क्लासेस की हुई, हमें तो सिंपल सवाल नहीं आते। फिर मुझे पता चला कि मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि डिफरेंशिएशन होती क्या है, मुझे यही नहीं पता कि इंटीग्रेशन क्या होती है, मुझे ये नहीं पता था, लेकिन मुझे इंटीग्रेशन करनी आती थी। फिर मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे 2-4 टीचर मिले, उनके अच्छा उनकी समझ में आ गया, उन्होंने कहा यार इंटीग्रेशन ये होती है। लेकिन जिस दिन मुझे इंटीग्रेशन समझ में आ गई, मैं अमेरिकन स्टूडेंट से आगे निकल गया। क्यों? सारे फॉर्मूले तो मेरे रट्टे लगाए हुए थे मैंने। अगर मुझे ये समझ में आ गया कि मैंने करना क्या है, अब मुझे वो फॉर्मूला चेक करने की जरूरत नहीं है। वो बेचारे लग रहे हैं, वो यूं ढूंढ रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत, मेरे तो यहाँ पे हैं सारे फॉर्मूले। मुझे यही नहीं पता था कि इंटीग्रेशन इज अ एरिया अंडर अ कर्व। आई मीन आप सोचें ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा एनईटी के अंदर 8 मैथमेटिक्स की क्लासेस अटेंड करे। आप ये कहें ये बंदा डफर है, मैं आई विल बेग टू डिसएग्री, आई वाज नॉट अ डफर, आई वर्कड हार्ड, आई गॉट 100 आउट ऑफ 10, but nobody taught me basic concepts. तो I think अच्छा अभी हमने लाहौर में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया लैम्प्रो बनाना, हमने उसमें 3000 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया, हमारे मुताबिक सिर्फ 25 पास हुए। लेकिन मैं बड़ा परेशान हुआ कि क्यों पास हुए भाई। अच्छा जो ज्यादा पास हुए वो नस्ट में कोई नहीं था, उनमें से लम्स का कोई नहीं था, कुछ यूईटी के थे, कुछ यूईटी टेक्सला के थे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे यही नहीं पता था कि कोई एक टेक्सला में यूईटी भी है, मुझे नहीं पता था। हमने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, चक्कर है। अगर तो आप ये सवाल पूछें कि इस सर्किट की आप ये कैलकुलेट करें रेजिस्टेंस समथिंग, बच्चा नहीं कर सकता।
अगर आप ये कहें कि किरचॉफ लॉ अप्लाई करो और ये कैलकुलेट करो, वो कर लेता है। ये है मसला। तो मसला ये है कि करिकुलम वही है नस्ट में, करिकुलम लम्स में भी वही है, बुक भी वही है, लेकिन कोई एक टीचर था यूईटी टेक्सला में या यूईटी में जिन्होंने बच्चों को बजाय ये स्पून फीडिंग करने के कि ये लॉ इस्तेमाल करो, एक तो कॉन्सेप्ट लेवल टीचिंग, एक तो ये। दूसरी बात, मैंने अमेरिका में जब मैं टीचर बना तो मुझे एक बात आई, उस वक्त इंटरनेट ईजाद हो चुका हुआ था। आप ये कहेंगे बड़ी बात है, मैं जब था इंटरनेट ईजाद हो गया, तो मैंने एक बात नोटिस की, अब मैं बच्चों को पढ़ाऊं क्या, वो तो पहले जाके इंटरनेट पर सब कुछ चेक कर लेते हैं। तो मैंने ये तय किया कि मेरा काम बच्चों को पढ़ाना नहीं है, मेरा काम बच्चों को इंस्पायर करना है, सो दैट दे लर्न बाय देमसेल्व्स। इन द एज ऑफ इंटरनेट, in the age of when the information is available and it's for free, आपके टीचर्स की कैपेबिलिटी ये नहीं है कि उन्होंने कहीं से पीएचडी की हुई है, उनकी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि उनको पेपर लिखने आते हैं, उनकी कैपेबिलिटी ये है कि क्या वो क्लास में जाके अपने बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं कि क्लास तो सिर्फ 1 घंटे की है, वो घर जाएं और वो सो ना पाए। यार मैंने ये सीखना है, ये बड़े मजे की। आज मुझे डॉक्टर साहब ने बात बताई है ना, मैं तो आज सोने को तो मारो गोली, वीकेंड को क्रिकेट भी नहीं खेलूंगा, मैं तो जाके ये करूंगा। ये हमारा काम है। अगर हम ये कर सके तो हमें अपने टीचर, ये हमारे वीसीज का काम है, ये हमारे उन टीचर्स का काम है जो हमें इंस्पायर करना है अपने बच्चों को। देखिए अगर बच्चा इंस्पायर्ड होगा ना, वो खुद सीख सकता है। क्या नॉलेज अवेलेबल नहीं है? क्या उस्मान इंस्टीट्यूट के अंडर ग्रेजुएट बच्चे टेप आउट नहीं कर रहे हैं चिप? क्या आप बैठ के उनको हर चीज सिखा रहे हैं? वो खुद नहीं सीख रहे, कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं। क्या और बच्चे नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये 2 चीजें मैं गुजारिश करूंगा कि हमें अपने टीचर्स को कहना है कि यार खुदा के लिए कॉन्सेप्ट्स अपने भी क्लियर करो, बच्चों के भी क्लियर करो, और दूसरा ये कि फोकस करो कि तुम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो, क्यों तुम्हें शौक है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जिंदगी में, सब चीजें छोड़ के तुम चिप डिजाइन के पीछे पड़ गए हो, क्या वजह है, क्यों इंस्पायर्ड हो, क्यों ये समझते हो कि इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट करो इसको रियल लाइफ से कि चिप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरा ये ख्याल है ये 2 चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इफ वी वांट पीपल टू बी सेल्फ ड्रिवन, पीपल वांट टू फील गुड कि मैं, और वो खुद सीखे ना जब बच्चा, तो वो ज्यादा वो दिमाग में रहती है बात। आप उसे पढ़ाएंगे वो आप निकल जाती है। ये मेरी गुजारिश हो। माशाल्लाह, बिल्कुल आई एम 100% आपसे एग्री करता हूँ इस बात से। जब बच्चों को आप एक बेसिकली कुछ राह दिखा देते हो, साथ काम बेसिकली राह दिखाना होता है, माइक्रो मैनेज भी नहीं करना होता, बिल्कुल सही बात है। तो वो बच्चा खुद उसमें से आपके पास ऐसी ऐसी चीजें लेके आता है जो आपने भी कभी नहीं सोची होती, बिकॉज अल्लाह ने हर बंदे को दिमाग डिफरेंट दिया है, वो डिफरेंट तरीके से सोचता है और डिफरेंट तरीके से करता है। ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च जब हम बना रहे थे तो बस मैं एक चीज ऐड करूंगा। मैंने कोर्सेरा पे कोर्स देखा, बहुत अच्छा कोर्स है, कोई इसराइल की यूनिवर्सिटी का था, हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम। तो मैं अपनी डिजिटल लॉजिक डिजाइन की क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि आपने ना ये कोर्स करना है, इसका सर्टिफिकेट, वो उसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस आप कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जैसे पाकिस्तान और कंट्रीज हैं उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो उसका नाम था नैंड टू टेट्रस। तो वो नैंड गेट से और टेट्रस एप्लीकेशन तक बनाते हैं, बना के सिखाते हैं आपको। उससे बच्चे की वो जो हमारी कंपार्टमेंटलाइज्ड लर्निंग है ना, कि डीएलडी अलग पढ़ाना है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर अलग पढ़ाना है, एम्बेडेड सिस्टम अलग पढ़ाना है, वो सब उसने ना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में 12 प्रोजेक्ट्स के अंदर 2 कोर्सेज बना के कोर्सेरा पर डाल दिए और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ जो बच्चा मुझे इसकी सर्टिफिकेट ला के देगा 10 नंबर मिल जाएंगे उसको। तो बच्चे खुशी खुशी वो करते हैं। तो जब उसके बाद की जो लर्निंग है उनकी, एग्जांपल आपको सामने है, माइक्रोइकोनॉमिक रिसर्च लैब में जो बच्चे यूआईटी में काम कर रहे हैं, सो इन सब ने वो दे आर गोइंग थ्रू द नेट टू डेटा एक्चुअली, तो दे नो द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम गेट लेवल टू द एप्लीकेशन लेवल। क्या एक एप्लीकेशन से फिजिक्स की बिट्स कैसे चेंज होती हैं, करंट कैसे चेंज हो रहा होता है। तो दे हैव, आपके अभी कुछ 100% एग्री है इसमें, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सेल्फ लर्निंग की है, फोरम अवेलेबल है, चीज अवेलेबल है। देखिए आपने नहीं देखिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत कुछ किया है। किसी को जो रास्ता दिखाना होता है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपने रास्ता दिखाया है, अब वो तो उस बंदे पे डिपेंड कर रहा है वो रास्ते पे चले ना चले। अगर आप उसको रास्ता ही ना दिखाते तो वो ना चला। तो आपने तो बहुत ये बड़ा काम किया है। मैं तो समझता हूँ ये हमारा काम ही सिर्फ रास्ता दिखाना है। एक छोटी सी जो प्रैक्टिकल टिप जो मैंने पिछले कुछ अरसे में ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स में, कि कौन से स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स कर लेते हैं समर में, ठीक है, दे टर्न आउट टू बी फार बेटर देन द अदर वंस, इवन इफ उनके ग्रेड्स अच्छे हो दूसरे वालों के। यानी हमने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि टॉपर थे
बट वो समर आया तो उनका दिल किया कि यार घर में टाइम गुजारना है और वो चले गए। और जो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मीडियोकर थे, यानी टॉप पे नहीं थे, बट उन्होंने इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप में यह हुआ कि उनको यानी जिस तरह जिन्होंने हमारे साथ की उनको तो हम ना कुछ एक्सरसाइजेस दे देते हैं कि यार ये करो, ठीक है, पहले तो ये इन पे ट्रेन हो जाओ, ठीक है। और उनमें क्योंकि वो फुल टाइम बैठे होते हैं, उन्हें डिबग करना पड़ता है, तो कई दफा ना क्योंकि आप क्लास में आप लेट से प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं तो डिबगिंग पे आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते क्योंकि आपने बहुत सारा कंटेंट कवर कर। लेकिन वो अगर फुल टाइम एक चीज पे लगा हुआ है, वो डिबगिंग के लिए आपके पास आएगा, आप उसको बताएंगे भाई इस तरह ब्रेक पॉइंट लगा दो, इस तरह तुम आगे चला दो चीजों को, तो वो कर लेगा। इसी तरह अगर कोई एफपीजीए पे आता है तो जिस तरह मैंने ये किया हुआ है कि मैंने डिजिटल सिस्टम डिजाइन लास्ट टाइम जब पढ़ाया था तो मैंने ना उसको फ्लिप कर दिया। यानी कि मुझे लग रहा था कि यार हम इसमें कहानियां बहुत सारी पढ़ाते जा रहे हैं कि ना, जो कि प्रैक्टिकली मुझे 20 साल में एक दफा भी नहीं यूज करनी, नहीं मुझे एक दफा भी खुद से एफपीजीएस यूज करते हुए मल्टीप्लायर नहीं बनाना पड़ा, ठीक है। अब मल्टीप्लायर का आर्किटेक्चर उसको समझाना इंपॉर्टेंट है, मगर मैंने उसको एंड में समझाया, मैंने पहले उसको बने बनाए मल्टीप्लायर यूज करना सिखा दिए। तो मैंने उसको मैंने वो कोर्स डिजाइन ऐसे किया कि जिंक एफपीजीएस यूज किया और उनको पहले 12-13 लेक्चर्स में वो पूरा थ्रू करवा दिया कि किस तरह उसको यूज करना है और उसकी जो भी आईपीज यूज होती थी छोटी मोटी। उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड कंटेंट किया। अब जो हमारे पास इंटर्नशिप करने आता है बच्चा, मैं उसको एक एफपीजीए पकड़ाता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि यार ये पड़ी हुई है प्लेलिस्ट, ठीक है, ये 12-13 लेक्चर्स हैं, फॉलो अलोंग, जहाँ पे मसला होता है उठ के मेरे पास आ जाओ, ठीक है, मुझे बता दो कि मसला आ रहा है, मैं तो बता दूंगा, ठीक है। मेरा भी टाइम नहीं ज़ाया होता उसको दोबारा बताने में, उसका भी टाइम नहीं ज़ाया होता, और वो उस इंटर्नशिप के बाद ही इतने काबिल हो जाते हैं कि जब वो एफवाईपीज करें तो वो बड़ी अच्छी आरटीएल लिख रहे होते हैं, कोड कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम हायर कर लेते हैं जब वो पास आउट होते हैं, ठीक है, बिकॉज वो इतने, और मैंने अभी अभी किया इंटरव्यू प्रोसेस, यानी अभी लास्ट मंथ, और मैंने उसमें नस्ट के भी बचे थे, लम्स के भी बचे थे। आप उनको 4 लाइन ऑफ कोड लिखने को देते हैं तो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन ने बड़ा खराब किया ना हमारा, ये जो लास्ट कोविड की वजह से ऑनलाइन सेमेस्टर हुआ इसमें खराब हो गया। और मैंने फिर आखिर में अपने बच्चे हायर कर लिए जो कि अब्बासिन यूनिवर्सिटी के थे, बिकॉज दे वर कॉम्पिटेंट इनफ। उनको उनको मैंने काम दिया कि ये डिजाइन करो, ये आरटीएल लिखो, उन्होंने फटाफट लिख के दे दी और फिर हमने हायर कर लिया, ठीक है। तो ये जो इंटर्नशिप है, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस पे हमें पुश करना चाहिए। मैंने उसके बाद से पुश किया जो अब्बासीन के बच्चे हैं उनको तो मैं पुश करता हूँ कि यार जरूर इंटर्नशिप करो, जिधर मर्जी करो, लेकिन किसी ऐसी जगह पे करो जहाँ डेवलपमेंट हो रही हो, ताकि आप जरा डेवलपमेंट सीख सकें। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक अर्ज करूंगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सीखा ऐसे ही है। मैं इंटर में था तो मेरे वाले साहब ने कहा कि आप जाके कुछ काम करें कहीं पे, ठीक है, समर में। तो हमारे मोहल्ले में एक मैकेनिक होता था, नाम था सलीम मैकेनिक, हम सबकी गाड़ियाँ ठीक करता था। उन्होंने मुझे कहा आप यहाँ पे काम करें, लेकिन आप वैसे काम करेंगे जैसे बाकी यहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं। तो वही हमने वो शलवार कमीज ऑयल से भरी हुई पहन ली और हम गाड़ी में नीचे अब ऑयल प्लग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने काम शुरू कर लिया। गर्मी कराची की, तबीयत सही हो गई एकदम अच्छी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन उसने देखा कि ये बच्चा अच्छे घर से है, थोड़ा सा मैकेनिक ने, उसने देखा कि मैं इसको थोड़ा और ट्रेन करता हूँ। तो मुझे कहने का तुम ऐसे करो, मेरे ऑफिस में आके बैठो, मैं देखो मैं क्या करता हूँ। मैंने उसको देखना शुरू किया, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग, हम कार्बोरेटर साफ किया करते थे। मैंने देखा, मैं भी कार्बोरेटर साफ किया करता था। वो कचरा आ जाता है, साफ करके दोबारा खोलो, लगाओ, दोबारा। ये पुराने जमाने की बात है जब कार्बोरेटर हुआ करते थे, अब तो इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन होती है। तो मैंने देखा कि एक बंदा आया तो उसने 200 रुपए लिए उससे, दूसरा बंदा आया उसने उससे 100 रुपए लिए, अगले बंदे से उसने कुछ भी नहीं लिया। जब वो सारा दिन खत्म हो गया, मैंने कहा सलीम साहब ये क्या चक्कर है आप? कहने के देखो बेटा, पहला बंदा आया मेरे पास, वो मुझे ये बताने आया कि गाड़ी है और अभी गाड़ी आप ठीक कर दें इसलिए कि अभी मेरी शादी हो रही है और मैंने नया बिजनेस खोला है, तो मैंने उसको 200 रुपये बता दिए। दूसरा बंदा आया, उसने बताया कि मुझे कोई ये प्रॉब्लम है, ये है, लेकिन बहरहाल नॉर्मल लाइफ थी। तीसरा बंदा है, उसने तुम्हारे सामने ही बताया था कि मेरी तो तलाक हो गई है और जॉब भी छूट गई है, प्रॉब्लम। ये मैं एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि वो हर आदमी को एक ही चीज के डिफरेंट पैसे लिया करता था। वैल्यू ड्रिवन कस्टमर प्राइसिंग। ये एक 14 साल बच्चे ने एक ऐसे बंदे से सीखी जो कि एक जाहिल अनपढ़ आदमी था। मैं जब बर्कले के अंदर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं खुदा के लिए आप ये ना सीखें कि सिर्फ प्रोफेसर या पीएचडी लोग या जिन्होंने बड़े स्टार्टअप किए हैं वही आपको सिखा सकते हैं। जिंदगी और प्रैक्टिकल जाके इंटर्नशिप से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने ये वैल्यू ड्रिवन प्राइसिंग का सारी जिंदगी फैसला, मैं कोई भी चीज बनाता हूँ मैं कहता हूँ भाई
हर कस्टमर को सेम चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक ही चीज बनाई, मैंने अमेरिका में एक प्राइस चार्ज करता हूँ, वही चीज मैं चाइना में बेचता हूँ, एग्जैक्टली वही चीज डिफरेंट प्राइस। तो वही चीज मैं कोरिया में बेचता हूँ डिफरेंट प्राइस, इसलिए को मार्केट ही डिफरेंट है, उसमें प्राइसिंग ही डिफरेंट है। अक्सर जो अमेरिकन एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कहते हैं ये क्यों तुम कर रहे हो, ग्रोस मार्जिन अफेक्ट होते हैं, ये अफेक्ट होते हैं। मैंने कहा भैया जो चाइना में चलता है ना वो चाइना में चलता है, जो कोरिया में चलता है ना वो कोरिया में चलता है। तो आपको अब ये देखें ये मैंने कैसे सीखा। इसीलिए मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि मैं बच्चों को खुदा के लिए इसमें ना पड़ जाओ कि पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। तुम्हें अगर कोई हाथ पकड़ता है पकड़ लो उसका हाथ और सीखो उससे, जाके उसके पाँव पड़ जाओ कि सर आप उस्ताद हैं, आप मुझे सिखाएं, मुझे आप रात भर बैठने पड़े, रात भर बैठो, वो तो एक गोल्ड है। तो मैं तो ये आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा कि हमें इंटर्नशिप्स पे कंपनियों को भी करना चाहिए और हमें स्टूडेंट्स को भी कहना चाहिए कि जहां भी करो, जरूरी नहीं है कि अगर चिप डिजाइन में मिल रहा है वो तो अच्छी बात है, किसी और। अक्सर मैंने देखा मेरा एक बच्चा था, उसके बाप की एक फैक्ट्री थी, ये स्टील का काम करते थे, ये गेट्स वेट्स नहीं बनाते, इस तरह का काम। वो अपने बाप के काम को अच्छा नहीं समझता था, ये स्टील के गेट्स वेट्स नहीं होते, इस तरह का काम था। मैंने कहा तुम जाके अपनी, नहीं वो तो अब्बू तो ऐसा काम करते हैं, मैं तो इंजीनियर हूँ। मैंने कहा उल्लू के पट्टे, तू जाके सीख, वहां तू जाएगा लेबर मैनेजमेंट क्या होती है, कस्टमर्स को कैसे बेचना है, सप्लाई चेन कैसे मैनेजमेंट करनी है, डेली प्रॉब्लम्स कैसे सीखनी, ये गोल्ड है, ये तुम्हें कोई प्रोफेसर नहीं सिखा सकता, ये जिंदगी भर काम आएगा, ठीक है ना। तो वो भी इंटर्नशिप है। तो ये जो हमारे कुछ बच्चों में ये बात भी है ना कि हालांकि उनकी अपनी फैमिली बिजनेसेस हैं, लेकिन वो समहाउ दे लुक डाउन अपॉन देम। मैं तो कहता हूँ कि वालिद साहब की परचून की दुकान हो, मैं खुशी खुशी जाके उसके अंदर बैठ के चीनी बेचूंगा। मैं सीखना चाहूंगा कि मेरे वालिद साहब चीनी बेच के मेरा घर का खर्चा कैसे चलाते हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा हर एक को, यार खुदा के लिए कहीं भी इंटर्नशिप मिले, और ये नहीं है कि आप जाके इंटेल में इंटर्नशिप करें तभी आपकी इज्जत होगी, कहीं भी इंटर्नशिप करें आप बहुत सीखेंगे। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। गुड, माशाल्लाह, जो एडवाइसेस हैं दीज आर गोल्ड एक्चुअली फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी काम कर रहे हैं। और इससे मिलता जुलता सवाल डॉक्टर यासिर भाई आपसे कि व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव द यंग एंटरप्रेन्योर, आप किसी छोटे बच्चे को जो अभी स्टार्ट कर रहा है हार्डवेयर डोमेन में ही, सही है, उसने कुछ बिल्ड कर लिया है, कुछ काम कर लिया है 3 साल 4 साल 5 साल इंडस्ट्री में, कि क्या करे वो क्या ना करे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, राइट। आपका जो क्लाइंट है सब पाकिस्तान का है यासिर भाई जी। बताइएगा कि किस तरीके से वो, किस तरीके से जिसे 5 साल का एक्सपीरियंस 6 साल का एक्सपीरियंस जस्ट लाइक यू आपने स्टार्ट किया। पहली चीज जो है कि मतलब हमें लोकल कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए। हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट काफी फर्क है। मैं यहाँ पर ना अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारा जस्टिस सिस्टम क्योंकि थोड़ा सा वीक है, यानी कि हमारे 2 मिलियन पेंडिंग केसेस हैं, तो हमें उसकी मुझे लगता है कि बाय प्रोडक्ट के तौर पे ये हुआ है कि पाकिस्तान में ना लोग इससे डरते नहीं है कि वो आपको कोई लारा लगा दे और एक्चुअल में प्रोजेक्ट ना दे, ठीक है। तो हम लोग जब नए नए बने तो हमने तो कहा कि जी हम सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। हमने 3-4 सिस्टम पहले बनाए हुए थे इसी टीम ने और डिलीवर किए हुए थे, और मतलब कस्टमर उससे बड़े खुश थे। तो हमने कहा जी चलो हम जाते। हमने बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशंस दी, बहुत से लोग इंटरेस्टेड हुए। उन्होंने कहा जी आप एक प्रपोजल ले आए, ठीक है। हमने प्रपोजल पे महीना लगाया, पूरी तरह वर्किंग। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा टेक्निकल प्रपोजल है। फिर वो चुप हो गए, ठीक है। और ये मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन कोई 15-20 दफा हुआ दिस साइकिल, ठीक है। तो एक मुझे लगता है कि इंजीनियर्स में ना टिपिकली एक इनहेरेंटली शायद होती है, या हमारा यानी आप बीबीए के बच्चे से मिले और जो एक इंजीनियर से मिले ना, तो उसके कॉन्फिडेंस में एक बड़ा फर्क सा होता है, ठीक है। वो बड़ा स्ट्रेट होता है बीबीए वाला या एमबीए वाला। इंजीनियर वाले ना जरा से डाउन टू अर्थ होते हैं और अपनी प्रोडक्ट को भी उतना खुल के नहीं बयान कर रहे होते, ठीक है। तो वो सेल करने की कैपेबिलिटी हम में थोड़ी सी कम होती है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये गलती ना करें कि टिपिकली हमें ना, क्योंकि हम उनको अदालत में तो नहीं लेके जा सकते जनरली कस्टमर्स को। एक जो पहली चीज है कि गवर्नमेंट जिधर भी टच होकर गुजरी हो ना, वहां पर आप एक्सपेक्ट करेंगे वो प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। हमने एक नाइट से भी प्रोजेक्ट किए हुए हैं, हमने और भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से किए हैं। वो एक उनकी लेथार्जी है जनरल कि वो लेट साइन होते हैं, साइन नहीं होते, फंडिंग्स रुक जाती हैं। तो इस किस्म के मसाइल काफ़ी सारे पेश आ जाते हैं। उसमें मेरा टिपिकली बेहतर ये है कि अगर आप बाहर की मार्केट को टारगेट करें, बाहर में भी मतलब वेस्ट की मार्केट जनरली मैंने देखा है कि लोग आपसे बात करते हैं,
क्विक डिसीजन लेते हैं, हाँ करनी है ना करनी है आपको बताते हैं, एंड दैट्स इट। ठीक है, पाकिस्तान में अभी ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली जो एटलीस्ट हमारा जो एक्सपीरियंस है ये इतना उस लिहाज से अच्छा नहीं रहा। यानी है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन अब मैं अगर कहूँ कि मैं अपना जब मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा था उस टाइम के यासिर को कोई अगर नसीहत करना चाहूँ तो मैं उसको ये कहूँगा कि यार आप कुछ चीज़ें स्ट्रेट अवे बिला झिझक पूछ लें। मतलब कई दफ़ा कस्टमर है, आप उससे पूछ लें आपका बजट कितना है। ठीक है, अब ये हम कई दफ़ा नए नए होते हैं ना तो डर रहे होते हैं पूछते हुए कि यार वो माइंड कर जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने काम करना है, आपने उसके टेक्निकल प्रपोजल पे टाइम लगा कर बनाना है, आप उनसे डिमांड कर लें कि जी इतने पैसे लगेंगे आपको प्रपोजल बनाने। ठीक है, अगर तो वो कस्टमर सीरियस हुआ, ही विल पे फॉर दैट। अगर वो कस्टमर ना सीरियस हुआ तो वो आए बाएं शाएं करेगा, उससे आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि कस्टमर सीरियस है कि नहीं। ठीक है, तो ये यानी कि हमें जो है ना थोड़ा सा पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट अगर करना है तो हमें ये वाले सिग्नेचर्स देखने पड़ते हैं कि क्या कस्टमर आपके साथ सीरियस है कि नहीं। ठीक है, और वो आप उसको गेज फिर इस तरह कर सकते हैं, अगर कस्टमर आपको बुला रहा है कि आप चल कर आकर आपसे मिलें, और अगर वो खुद चल के आ रहा है, इससे भी आपको किसी हद तक अंदाजा हो जाता है कि अगर कोई आपके ऑफिस में आकर आपसे बात कर रहा है कि जी हमें ऐसी चीज चाहिए, तो इज प्रॉब्ली समवट सीरियस। ठीक है, तो वो अगले स्टेप तक भी जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि कुछ इस किस्म के चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में। एफपीजीए बेस्ड डिजाइन एसिक का तो अभी फिलहाल इवॉल्विंग मार्केट है, और मेरा ख्याल है कि नवीद साहब और बाकी ये जो टेप आउट पाकिस्तान की एफर्ट है, और ये जो है ना ये एक बड़ा अच्छा स्टार्ट है जो कि मेरा ख्याल है कि ये मार्केट को इवॉल्व करके ले जाएगा। और इससे उसके बाद एक कुछ लोग बाहर से वापस आए हैं, दे आर स्टार्टिंग कंपनीज हेयर, तो वो एसिक की कंपनीज बन रही हैं, तो वो एक बहुत अच्छी आउटलुक लग रही है कि वो बनेगी। लेकिन जो एफपीजीए बेस्ड डिजाइन की मार्केट है इधर, ठीक है, इधर बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए होता है काम उनको, और उनसे नहीं हो पा रहा होता, और उधर अगर आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है तो आप उनको अप्रोच करें और डायरेक्ट उनको बताएं कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं और उनको क्या चाहिए, और देन यू कैन गेट द प्रोजेक्ट्स। तो ये मेरा ख्याल है एक चीज़ है। दूसरा शायद एक चीज़ ये भी है कि मेरा ख्याल है कि जो कंपनी बनाने का कई दफ़ा सोच रहे होते हैं ना तो उनके जहन में एक गलत पिक्चर होती है। उनको लग रहा होता है कि कंपनी बनाने का मतलब है कि अब मैं बॉस बन जाऊंगा। ठीक है, अभी फाउंडर तो मैं एक सीईओ होऊंगा और मैं 10 बंदे हायर करूंगा, मैं इसको भी काम दे दूंगा उसको भी काम दे दूंगा। कंपनी बनाने का मतलब ये होता है कि आप जनरेटर भी आप हैं, इंजीनियर भी आप हैं और सीईओ भी आप हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे काम करने हैं एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, जब तक आपके पास वो ना आए, तो बी रेडी फॉर हार्ड वर्क इनिशियली। उसके बाद शायद आप थोड़ा सा जब आपके पास एक दो प्रोजेक्ट्स लिंक हो जाएं और फिर आप कर सकें। तीसरा मैं शायद ये कहूँगा कि ना कि किसी ने कभी मुझे बताया था कि यार 3 चीज़ें होती हैं, एक चीज़ है आपकी कॉम्पिटेंस, एक चीज़ है पैसा, ठीक है, और एक प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट आइडिया आपका कोई जो जबरदस्त था। अगर इनमें से 2 हो तो आप तीसरी खींच लेते हैं किसी ना किसी तरह। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से एक हो तो 2 नहीं खींची जाती। ठीक है, तो अगर आप कंपनी बनाने जा रहे हैं तो स्पेशली अगर वो सर्विसेज नहीं प्रोजेक्ट्स प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, तो फिर आपको एटलीस्ट ये 2 चीजें होनी चाहिए, या तो आप कोई पैसे का सोर्स देख लें, या और कॉम्पिटेंस अपनी ठीक हो तो आप कोई प्रोडक्ट आइडिया भी ढूंढ लेंगे, अगर प्रोडक्ट आइडिया और कॉम्पिटेंस हुई तो आप प्रोजेक्ट भी ढूंढ लेंगे। तो ये है मेरा ख्याल है कि ये शायद इसमें जो अभी जो मिसिंग चीज अभी तक मुझे लगती है, जो अभी पूरी तरह मुझे उसके असरात उतने नजर नहीं आ रहे लेकिन वो आने चाहिए, वो ये है कि जो हमारा डायस्पोरा है उसके साथ हमें ना कोई इंसेंटिव स्ट्रक्चर शायद बिल्ड होने की जरूरत है कि वहां पर जो लोग हैं वो इधर बाहर का काम इधर कर सकें। मैं इधर ये गारंटी कर सकता हूँ कि यहाँ पर टैलेंट है, दे वर्क रियली वेल, वो बाहर के रिसोर्स से हाफ प्राइस पे इधर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको इधर से जो है कोई इंसेंटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रॉब्ली कि अगर कोई बंदा काम लाता है बाहर से, एफर्ट पुट करता है, तो मे बी आप उसको 8-10% रखें जो कि वो अगले साल 1.5 साल तक ले, ताकि उसका भी इंसेंटिव हो और ये एक विन विन बन सके। ठीक है, कि बाहर से आप काम इधर आउटसोर्स कर सकें, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इधर के लोगों में मैंने ये देखा है कि उनमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है।
यानी कि जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं ना, जिन्होंने काम आउटसोर्स करना होता है, उसमें मैं काउंटेबल हैं वो बंदे जो मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखे हैं कि जो ये कॉन्फिडेंस के साथ स्टेप ले लेते हैं, हाँ यार आउटसोर्स कर देते हैं। ज्यादातर को शक होता है कि मैंने आउटसोर्स किया तो बाकी समझेंगे कि इसका कोई, इसने कोई अंडर खाते हैं ना, इनको कहते हैं करप्शन की है या क्या किया है, नैब ना पीछे पड़ जाए, कुछ और ना हो। तो वो इस किस्म का चक्कर है, एक ये चक्कर है। दूसरा वो जो थोड़ा सा ना बहुत सेफ जॉब कर रहे होते हैं वो, यानी कि वो चाह रहे होते हैं सरकार में ना, इन एक्शन उनको लगता है बेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है, कि कुछ नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ कोई केस भी नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि ये इससे बाहर आने की भी जरूरत है, ठीक है। तो ये अगर हो जाए ये चीज हो जाएगा, ये कंप्लीट करें। तो मेनली यानी कि मेरा ख्याल है कि ये दोनों एंड पे शायद होने की जरूरत है। डायस्पोरा अगर बाहर से प्रोजेक्ट भेज सके, दैट वुड बी प्रॉब्ली बेस्ट स्टार्ट, जिससे ये होगा कि मैंने देखा है कि लोकल लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ड होता है। मतलब अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो बाहर से जाकर वही चीज ले लेते हैं, वो पाकिस्तान में आकर नहीं करते। यानी कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। हमारी एक ग्रुप के साथ बातचीत चल रही थी, ठीक है, कि हमने ये प्रोजेक्ट करना है, और उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि कब तक आपको चाहिए। उन्होंने कहा जी रिक्वायरमेंट तो हमारी एज ऑफ यस्टरडे है, ठीक है, हमें तो कल चाहिए था, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स फॉलो ऑन ऑन दैट। हमने उस पर काम करना शुरू किया। पैरेलल में एक और हमारे यानी जो ईटी के कोलीग थे, डीपीएन एक कंपनी है यूएस में, वो एआई चिप्स बनाती हैं, उन्होंने भी हमें कांटेक्ट किया, वो एफपीजे का कुछ काम पाकिस्तान में कराना चाह रहे थे। तो हमने कहा कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में जिनकी एज ऑफ यस्टरडे रिक्वायरमेंट थी, इट हैज बीन ऑलमोस्ट 3 years, ठीक है, और अभी तक वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में नहीं आया ठीक है। और उसमें हमने काफी सारा काम कर लिया है, और यानी कि छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में कर लिया, लेकिन एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में अभी तक नहीं आया। जो यूएस से काम आ रहा था, सीईओ जो था वो कंपनी का यूएस से, वो फ्लाई करके पाकिस्तान आया, अपने साथ सारा सामान लाया, 1 हफ्ता उसने लगाया, हमें ट्रेन किया। हमने 4-5 महीने दिन रात लगाकर काम किया। उनकी उसकी बेस पे $multi-million की फंडिंग हो गई, उनकी चिप्स लॉन्च हो गई हैं, ठीक है। तो मतलब, और अब वो अगले स्टेज पे हैं किसी और। लेकिन वो जो एक जो था ना, जिसको आप बात कर कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस आ जाता है पाकिस्तान, ये शायद हल होने वाला है पाकिस्तान में, इसको हल करने की जरूरत है। लेकिन मेरा ख्याल है वो हल ऐसी होता है कि जब बाहर से लोग काम करवाना आपसे शुरू हो जाते हैं ना, तो पाकिस्तानियों को भी कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है कि यार अच्छा इन्होंने उनका काम कर लिया तो हम भी कर लेंगे। और हमने ये देखा है कि जब हमने बाहर डिलीवर किया तो इधर लोगों ने भी हमें एक्सेस करना शुरू कर दिया कि यार आप हमारे लिए कुछ करें, और इस तरीके वो मार्केट बनना शुरू हो जाती है। और वैसे भी डॉक्टर नवीद यहाँ पे हैं तो ऑलरेडी इनके बहुत सारे कनेक्शन हैं बाहर, जो बेसिकली मिल के बहुत सारे स्टार्टअप पाकिस्तान में आना भी शुरू हो गए हैं, और कुछ ने टीम बिल्डिंग स्टार्ट भी कर दी है, जैसे आपने वेरिफिकेशन के बारे में बात की। इससे रिलेटेड डॉक्टर नवीद से एक सवाल है कि जो फ्रीलांस हार्डवेयर डिजाइनिंग के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो कौन से स्किल्स उनको चाहिए होंगे जो जो वो फ्रीलांस कर सकते हो इस वक्त राइट नाउ। और कुछ बता दें कि जो अभी फाइनल ईयर का बच्चा है, फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, किन स्किल्स को वो फोकस करे फॉर हार्डवेयर डिजाइनिंग, एसेक या एफपीजीएस, उसमें किस स्किल्स पे करे जिस पे वो फ्रीलांस भी कर सकता है और आगे जाके बड़ी कंपनी में काम भी कर सकता है। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अब हम जिस जगह पर हैं, अगर आप एक पूरा हार्डवेयर डिज़ाइन साइकिल देखें, मेरे ख्याल उसके अंदर एटलीस्ट 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। सबसे पहले एक बहुत ऑब्वियस चीज़ तो वेरिफिकेशन है। आई थिंक वेरिफिकेशन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आई थिंक इतने लोगों की ज़रूरत है पूरी दुनिया में, आई मीन वेस्ट में भी। और अच्छा, फ्रीलांसिंग जहाँ तक ताल्लुक है ना, मेरे ख्याल से वो हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन है वेस्ट के साथ काम करने में, बजाय ये कि आप ये कहेंगे डिज़ाइन सेंटर स्टार्ट हो। मैंने मार्वल को ले लें तो आप अमेजोन को ले लें तो माइक्रोसॉफ्ट को ले लें, और मेरी अपनी कंपनियों को ले लें, मैंने बड़ी कोशिश किया वो डिज़ाइन सेंटर को। पाकिस्तान के खिलाफ इनर्शिया इतना ज़्यादा है कि ये बहुत मुश्किल काम है कि अगर आप सीईओ को कन्विंस भी कर लेंगे तो बोर्ड में को अटक जाएगा, बोर्ड में कर लेंगे तो इन्वेस्टर में कटेगा। इस जनरली स्पीकिंग देख, कोई अगर आपसे नफरत करता है ना तो आपसे नफरत करता है, वो ये बकरे की माँ वाली प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आप इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने अपनी कंपनियां भी बना के देख ली हैं, मैंने यहाँ डिजाइन सेंटर भी बना के देख लिए हैं। वो फिर जब उनका दाव चलता है वो मेरा डिजाइन सेंटर बंद करवा देते हैं। ओ जी जियो पॉलिटिकल रिस्क आ गया जी, वो अब टेररिस्ट अटैक आ गया।
तो जिसकी वजह से मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। आप देखते हैं मैं उम्मीद छोड़, मैंने इसलिए चाइना की तरफ रास्ता इसलिए पकड़ा है कि ये अगर मैं बम फटने को रोक नहीं सकता, लेकिन मैं ये सोच कर सकता हूँ कि वो बेचारे 9 चाइनीज जो हैं वो बेचारे मर गए, चाइना में मैं बैठा हूँ, कोई ये बात नहीं हुई कि चाइना में जो अमेरिका में पाकिस्तान में सारा काम बंद करो, ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन अगर 9 अमेरिकन इंजीनियर मर जाते हैं, मैं आपको ये कहता हूँ कि अमेरिका ने कहा था कि अगले 50 साल तक भी हम किसी को वीजा आने जाने ही नहीं देंगे किसी पाकिस्तानी को, ये होगा, ये फर्क है। तो इसीलिए हमें डिजाइन सेंटर्स उस तरफ नहीं देखनी, लेकिन गिग इकोनॉमी में कर सकते हैं। इसलिए कोई एक इंडिविजुअल डिसीजन होती है, उसमें ग्रुप डिसीजन नहीं चाहिए होता, वो हमें मिल जाएगा। तो एक तो पहले मैं ये बात कहूंगा डिफरेंस है, अमेरिका की तरफ और यूरोप की तरफ देखें तो गिग इकोनॉमी की तरफ देखें, जब चाइना की तरफ देखें तो आप यू कैन थिंक बिगर, डिजाइन सेंटर्स, लोग भेजें, वहां के लोग आए, डिजाइन सेंटर, ये डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब जो स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज हैं, मैं समझता हूँ वेरिफिकेशन, कोर वेरिफिकेशन हो गई, बेशक इवन एसओसी वेरिफिकेशन होगी, मेरे ख्याल से ये भी हो सकती है। मेरे ख्याल से आईपी डेवलपमेंट है, आईपी डेवलपमेंट के अंदर हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। एक कंपनी होती थी पाम चिप पाकिस्तान में, मैंने उनकी वो कंपनी के कुछ लोगों को हायर कर लिया था। मैं आई थिंक वी एक्वायर्ड द पाम चिप इन ओपन सिलिकन। ओपन सिलिकन की हमने आईपी की कंपनी वो 1-2 साल चलाई थी, उसके बाद बोर्ड ने फिर कोई बम अटैक हो गया था, वो मैरियट का अटैक हुआ था वहाँ शायद इस्लामाबाद में ना, उसके बाद हमारे बोर्ड ने पूरा चक्कर चला दिया कि जी इसको बंद किया जाए, ये तो पाकिस्तान में बड़ा खतरा है, ये हुआ। लेकिन वो जो हमारी आईपी की टीम थी, उन्होंने DDR3 का कंट्रोलर लिखा था। वो कंट्रोलर आज तक हम बेचते हैं ओपन सिलिकन के अंदर, और आप जाके अगर उसके वीपी ऑफ जो आईपी इंजीनियरिंग का मोहित, उससे पूछिए, वो कहता है कि नवीद भाई इससे अच्छा कंट्रोलर मैंने देखा नहीं। ये हमारी इस्लामाबाद की टीम ने लिखा था, अरशद रियाजुद्दीन और वो सारी उनकी टीम है, इतना जबरदस्त काम किया था उन्होंने, ठीक है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये एक आईपी डेवलपमेंट होगी। अच्छा, फिर दूसरा मेरा ये ख्याल है कि हम लोग यह ओपन सोर्स के ऊपर बहुत सारा काम कर सकते हैं, अपने आप को एफिलिएट कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरा आपकी सेल लाइब्रेरी डेवलपमेंट है, लॉजिक, ये आपके थोड़े एनालॉग ब्लॉक्स हैं, ये काम हो सकता है, बड़ा आइसोलेटेड काम होता है, इसको सीखा जा सकता है, इसको किया जा सकता है, इसको टेप आउट करके चेक किया जा सकता है, ठीक है ना। ये इस टाइप के काम है। देखें बांग्लादेश के अंदर वो कंपनी उल्का सैमी, वो लोग सैमसंग के सेल लाइब्रेरीज बनाते हैं, वो हम भी कर सकते हैं, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता तो इसी तरह आई थिंक अब ये कहानी आगे चलेगी, और यही काम मेरे ख्याल से आप लोगों का जो वहाँ प्रैक्टिकल हिस्सा, यासिर भाई हैं ये FPGA में है, ये अगर एक लिस्ट बनाएं कि भाई ये आप हैं, अली भाई आप भी एक लिस्ट बनाएं कि भाई आपका एक्सपीरियंस है, मैं कुछ लिस्ट बनाऊं, तो फिर हम कोर्सेज लोगों के ट्रेनिंग अरेंज करें। अब पाक लॉन्च का ये पूरा एक फिनोमेना हो गया है, सबको जमा करें। दूसरा, हमारे जो सॉफ्टवेयर में है ना बच्चे, 1.5 लाख 2.5 लाख बच्चा है वहाँ पे, उनमें से कुछ की हार्डवेयर क्रॉस ट्रेनिंग ऑलरेडी है, उनमें से भी हम कुछ बच्चों को ला सकते हैं यहाँ पे गिग इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना। मेरे ख्याल से बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे ख्याल से ये पाक लॉन्च का ये यूज करके ना एक एक लिस्ट पब्लिश करते हैं कि ये हैं 8, 9, 10 एरियाज, मिलके रियलिटी क्या है बच्चों की कैपेबिलिटी की, डिमांड क्या है मार्केट के अंदर, ट्रेनिंग किसमें पॉसिबल है, वो सबका करके लिस्ट पब्लिश करें। हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, इनकी ट्रेनिंग करें, टेप आउट अगर से एक्सपीरियंस आता है वो करें, कॉन्फिडेंस आता है वो करें, तो बच्चों को फिर तैयार करते हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक देयर इज गिग इकोनॉमी पॉसिबल है, एंड आई थिंक अगर सॉफ्टवेयर वाले 2 बिलियन कमा रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम भी कोई 500-600 मिलियन तो कमा ही लेंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल। आई थिंक ये हमारे टू डू लिस्ट में होना चाहिए, टेप आउट पाकिस्तान और पाक लॉन्च में, और बात है माइक्रोट्रॉनिक रिसर्च लैब और स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी वी आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट, Renzyme is also will be a part of it इंशाल्लाह ताला। और ये अच्छा हो जाएगा कि हम एकेडेमिया में भी हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इंडस्ट्री के हैं, ओवरऑल मिलके करेंगे सर, मिलके कर सकते हैं बिल्कुल बहुत तरीके से, और एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। ट्रेन आज ह्यूमन मेरी रिसोर्स। भी NED से बात हो रही थी तो मैंने सारे रिक्वेस्ट ये की कि आपको पता होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट क्या है। मैंने कहा कि आप बताएं टेस्ला की क्या प्रोडक्ट है। टेस्ला एक गाड़ी बनाती है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट तब तक वो प्रोडक्ट नहीं जब तक कि कोई खरीदे नहीं। टेस्ला ये नहीं करती कि प्रोडक्ट बना के और बाहर पार्किंग लॉट में खड़ा करके कहते हैं हमारा काम तो खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हम बच्चों को बाहर पार्किंग लॉट में खड़ा करके क्यों समझते हैं हमारा काम खत्म हो गया? जब तक बच्चे को जॉब नहीं मिली, जब तक बच्चा नेक्स्ट स्टेज पे, हमारा काम खत्म नहीं हुआ, वो डिग्री बेकार है। हमें डिग्री से अपनी फोकस हटा देना चाहिए। डिग्री इज अ स्टेप। जब तक बच्चा एक प्रोडक्टिव तरीके से काम नहीं कर रहा, हमारा काम खत्म नहीं हुआ।
हमें अपनी आइडिया और मेंटेलिटी चेंज करनी चाहिए। हमारी प्रोडक्ट पार्किंग लॉट में नहीं है, हमारी प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में है। जब तक कंपनियों में बच्चे काम नहीं कर रहे, हमारा काम खत्म नहीं हुआ। और जब तक प्रोफेसर ये नहीं समझेंगे कि हमारा काम बच्चों की जॉब्स हैं, डिग्रियां देनी नहीं है। डिग्रियां बांटना तब था जब वो अंग्रेजों का राज होता था, इसलिए कि उनके जॉब्स बहुत थी। वो तो हमें उन्होंने इन चक्करों में फंसाया इसलिए कि उनके जॉब्स बहुत थी, लोग नहीं थे। उन्होंने कहा ये फैक्ट्रियां लगा दो डिग्रियों की, ताकि हमें टेस्ट ना करना पड़े। ये अंग्रेजों का मामला था, वो कहानी खत्म हुए भी 75 साल हो गए हैं। हमें अपनी माइंड सेट चेंज करना है और बच्चों की जॉब हमारा मकसद होना चाहिए। जिस दिन हम ये सोच लेंगे ना, तो हम वो बच्चे अलाइन हो जाएंगे। अभी हम बच्चों से अलाइन नहीं है। बच्चे का ख्याल है मेरा काम है जॉब करना, प्रोफेसर का काम है तुम्हें डिग्री देना। वो अलाइनमेंट नहीं है ना, हमें अलाइनमेंट करनी है अपने बच्चों की। सर ये हमारे बच्चे हैं, इनमें से बच्ची मेरी बच्ची भी हो सकती है, आपकी बच्ची भी हो सकती है, इनके बच्चे मेरे। तो हमें ये सीखना है कि हमारे बेटे हैं, हमारी बेटी हैं, हमने इनको ऐसे ट्रीट करना है। और जब तक ये जॉब तक ना पहुंचे हमारा काम खत्म नहीं हुआ। तो ये मेरी तो ये अर्ज होगी। माशाल्लाह सर, बिल्कुल दिल पे लगी आपकी बात, बिल्कुल। और आई एग्री विद यू, जितने बच्चों को आप सिखाएं जॉब्स उनकी आपकी जिम्मेदारी। जी सर, आप बोलिएगा। मैं एक छोटी सी चीज कहता हूँ तो अमूमन के ना, जो आजकल के दौर में ना, जॉब इज 300 आवर्स ऑफ वर्क अवे। ठीक है, ये मेरी एक टिपिकल सी एक है कि 300 घंटे आप काम कर सकते हैं ना, तो जाओ आपके पास। मैंने क्योंकि यूट्यूब पे अपने कोर्सेज अपलोड करना शुरू किए, तो मैंने हिसाब लगाया एक दिन कि एक जो कोर्स है ना, वो तकरीबन 35 घंटे की लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, 30 to 35 आवर्स। ठीक है, और अगर मैं उसमें वर्किंग डाल दूं कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, सारी असाइनमेंट्स की, तो तकरीबन ये 50 एक घंटे का काम बनता है। ठीक है, मैं इसको बढ़ा के कहता हूँ कि आप 100 घंटे में एक कोर्स कर लेते हैं। एक जो आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है किसी भी जॉब की, उसकी अगर मैं डेप्थ देखूँ ना, अगर आपने करिकुलम्स देखे होंगे, तो टिपिकली एक फील्ड की एक्सपर्टीज 2 से 5 कोर्सेज डीप होती है। अगर आपने प्रोग्रामर बनना है तो फाउंडेशन आपकी जो है ना, वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स, जिसमें C++ वगैरह सीखेंगे, और फिर डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स है। ये आपने अच्छी तरह किए हुए हो ना, यानी कि 200 घंटे इस पर लगा दिए हुए। उसके बाद आप एक और कोर्स कोई भी स्पेशलाइजेशन का कर लें, चाहे वो ऐप डेवलपमेंट हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो कोई और डेवलपमेंट हो, आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, हम लोग देख रहे होते हैं, मैं जो जॉब इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं तो अमूमन फंडामेंटल्स देख रहा होता हूँ कि मैं तो छोटा सा लूप दूंगा, एफएल्स दूंगा, वो लगा सकता है, बाकी हम ट्रेन कर लेंगे उसको। ठीक है, और वो हो भी जाता है। एफपीजीए बेस्ड डिजाइन या ऐसे डिजाइन, यानी अब मैंने एफपीजीए बेस्ड डिजाइनर अगर हायर करना है, उनको बेसिकली 2 कोर्सेज चाहिए, लॉजिक डिजाइन, डिजिटल सिस्टम डिजाइन। ये 2 कोर्सेज हैं, ऑनलाइन पूरे के पूरे पढ़े हैं, टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप अगर कोई सेल्फ बेस्ड लर्नर है, अगर वो 200 घंटे लगा सकता है, ठीक है, ओवरऑल, विच इज मतलब टिपिकली जब आप जॉब करते हैं तो 40 घंटे एक वीक में आप काम करते हैं ना, तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपने 1.5 महीना लगा दी। ठीक है, तो आप ये जो 1.5-2 महीने लगाने हैं, अगर ये कोई भी लगाने को तैयार है ना, तो वो जॉब उसके लिए वेटिंग है। ठीक है, मैंने आज तक कॉम्पिटेंट बंदा फारिग नहीं देखा। ठीक है, मेरी ये महीना फारिग रहा होगा, 1.5 महीना 2 महीने, इससे ज्यादा मैंने आज तक कॉम्पिटेंट बंदा फारिग नहीं देखा। अभी हम जॉब ऑफर करते हैं, 200 सीवीज हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, और हम उनमें से शॉर्टलिस्ट करके उनसे इंटरव्यू करते हैं, तो उनको चीजें स्किल्स नहीं आ रही होती। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको हल करने का तरीका यही 200-300 घंटे लगाने का। जो स्टूडेंट ये काम कर सकता है वो कहीं ना कहीं पे फिट हो जाएगा, और वो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं एग्जेक्टिव से पूछता हूँ, वो कहते हैं यार हमें बंदे नहीं मिल रहे। ठीक है, और आप जॉब के लिए पोस्ट करते हैं तो आपको 200 सीरीज आ जाती हैं, तो मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर ना। और उसको फिगर आउट करने का, आजकल कोविड की वजह से पिछले मेरा ख्याल है कि 1.5 साल में सिर्फ आप देखें, स्टैनफोर्ड, MIT, CMU, बर्कले, बेस्ट कोर्सेज आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। बेस्ट कोर्सेज आपको, बेस्ट टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, उस पर अपलोड कर दिए। ठीक है, तो आपको मेरी नहीं समझ आ रही, आप उससे समझ लें। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जॉब इज जस्ट 300 आवर्स ऑफ वर्क अवे, वो जब भी कोई कर ले। ठीक है, मैं इसमें ये अर्ज करूंगा कि मैंने PhD किया तो मैं आपको बताया था, मैं एक ट्री हगिंग पिंको फेज में से गुजर रहा था। सो आई वेंट एंड पिक्ड अप अ जॉब इन वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी, एक नो नेम छोटी सी यूनिवर्सिटी, छोटी भी नहीं थी, 30,000 स्टूडेंट थे, लेकिन वो था नो नेम, इज नॉट बर्कले एंड स्टैनफोर्ड। तो मैंने अपने बच्चों से कहा, ये 300 घंटों वाली बात पे मैं बात करने लगा हूँ,
कि तुम जब जाओगे जॉब के लिए तो वहां पे तो बर्कले का बच्चा बैठा होगा, स्टैनफोर्ड, तुम्हें कौन जॉब देगा? तुम कहाँ से उठ के आओगे, कालामुजू वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी, तुम्हें कौन जॉब देगा? कहेंगे हमेशा फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा तुम कोई ऐसा काम करो जो कोई ना बोल सके, या आपने ऐसा काम करना। वो 300 घंटे वाली बात ही आ जाती है, क्या कर सकते हैं? मैंने कहा आप देखें, आप एक पेपर लिखें, वो रोक सकता है आपको? कहेंगे सर वो तो बड़ा मुश्किल काम होता है। कितना टाइम लगेगा? 300 घंटे। वही वाली बात आ गई ना। मैंने कहा तुम एक पेपर, मेरे सारे पीएचडी और मास्टर, पीएचडी तो ज्यादा लिखते थे, मेरे सारे मास्टर स्टूडेंट्स आप ये देखें 7 सालों में हर ने एक पेपर लिखा। क्यों? जब जाओ इंटरव्यू के लिए तो एक इंटरव्यू में हर आदमी ये जरूर सवाल पूछता है आपसे कि अच्छा तुम ये बताओ यार, आज 15 एप्लीकेंट्स हैं मेरे पास, मैं तुम्हें क्यों हायर करूं? तो आप ये बोलें आपके 15 एप्लीकेंट हैं, हो सकता है कोई बर्कले से हो, स्टैनफोर्ड से हो, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिन्होंने एक पेपर लिखा होगा। मैंने लिखा हुआ। मेरे सारे बच्चे बेहतरीन कंपनियों में जाके हायर हुए, इसलिए कि, लेकिन वो 1.5 साल में मास्टर नहीं कर रहे थे, वो 2 साल में मास्टर कर रहे थे, 6 महीने। ये डॉक्टर साहब ने बात की है ना, ये 300 घंटे, और ये मेरे दिल को लग गई। 300 घंटे आपको चाहिए, उन्होंने 300 घंटे एक्स्ट्रा लगा के अपने लिए एक जॉब पैदा कर ली। अब आप जाएं, अच्छा एक तो बात ये है कि जब आप पेपर लिखते हैं कॉन्फिडेंस आ जाता है आपका। मेरे बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ा था, इसलिए कि अगर वो आपसे बताएंगे आप मुझे क्या बताना चाहते हैं, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि टेप आउट ऐसे किया है। तुमने टेप आउट किया हुआ है? हाँ जी। कोई बर्कले का बच्चा, कोई स्टैनफोर्ड का बच्चा मास्टर्स में उस जमाने में टेप आउट नहीं करता था। मैं कहता था कि टेप आउट, यार तुम्हारे टेप आउट में हो 4 ट्रांजिस्टर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई देखने नहीं आ रहा। तुम्हें प्रोसेस तो पता चल गया ना, तुम्हें ये तो पता चल गया कि डीआरसी क्या होती है, एलवीएस क्या होती है, प्लेस एंड राउट क्या होता है, पार्टीशनिंग क्या होती है, प्लेसमेंट क्या होती है, फ्लोर प्लानिंग क्या होती है, ग्लोबल राउटिंग क्या होती है, ये तो नाम तो पता चल गए। ये तो अब इंटेल को ट्रेन नहीं करना पड़ेगा ना तुम्हें, लेकिन वो घंटे लगाए बगैर नहीं हो सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कोविड की वजह से अब वो ऑनलाइन हो गया, वो और भी आसानी हो गई है। तो मेहनत जो है ना वो तो अब मेहनत विद ऑनलाइन अब पॉसिबल। और गिग इकोनॉमी की जहां से बात स्टार्ट हुई थी, हम अगर एक लिस्ट बना लें, पार्क लॉन्च का बड़ा अच्छा हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हम ये लिस्ट पब्लिश करें, बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट करें, ठीक है ना, और जैसे ही हो जाती है तो फिर हम एक पब्लिसिटी कैंपेन मैं खुद शुरू करूंगा कि बच्चों को फिर जॉब्स दिलाना शुरू करें, हाईलाइट करें, पार्क लॉन्च को यूज करें, और चीजों को यूज करें, लिंक्डइन को यूज करें, सक्सेस स्टोरीज को प्रमोट करें कि जी फलानी कंपनी की सारी जो वेरिफिकेशन है वो तो जनाब कराची में हो रही है, वो तो जनाब इस्लामाबाद में हो रही है, जो लाहौर में हो रही है, वो फिर यूज टू हो जाएगा ना। और एक और काम मैं कहूँ, जितने भी बच्चे हैं ना, सब लोग अपना लिंक्डइन प्रोफाइल जो है ना उस पर पाकिस्तान जरूर लिखें, ताकि जो कोई चेक करे कि कितने डिजाइनर, वो जो लिंक्डइन करेंगे तो लाहौर, कराची, पाकिस्तान, ये कराची, लाहौर सब आ रहा है ना सब, ये भी उससे ये लोग ये भी देखते हैं ना कि ये अकेला बंदा तो नहीं बैठा हुआ है। कहेंगे नहीं नहीं भाई, लाखों बंदे पाकिस्तान में हार्डवेयर में काम कर रहे हैं, जरा लिंक्डइन पे एक तुम सिंपल सा वो तो करके देखो। ये भी हमें इनकरेज करना लोगों को चाहिए ताकि हमारी प्रेजेंस हो। आई थिंक दैट विल आल्सो हेल्प द गिग इकोनॉमी। बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। वन ऑफ आवर स्टूडेंट, उसकी स्टोरी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज में, आई थिंक ही वाज एक्सेप्टेड, तो अभी अगस्त में 30 अगस्त को जा रहा है। जीशान की बात कर रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बच्चा है जीशान रफीकी। जीशान तो अभी अंडर ग्रेजुएट में है, अभी होगा, वो ग्रेजुएट होगा। मैं हादिर खान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हादिर की बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह से। तो जब वो इंटरव्यू प्रोफेसर से बात कर रहा था तो उसने पूछा कि आपने मास्टर्स कहाँ से किया है, तो उसने कहा मैंने तो मास्टर्स किया ही नहीं है, मैंने तो बैचलर में टेप आउट किया। तो वो तो अमेज कहने लगा कि हमारे यहाँ भी जो है वो मास्टर्स में भी ये काम होता है। नहीं होता सर, नहीं होता। तो मैंने ये टेप आउट वर्ल्ड, हाँ, उसको डीन स्कॉलरशिप ऑफर किया होता है। देखिए जब मैंने हमने हर बच्चे को अगर आप टेप आउट करा दें और हर बच्चे को ये इंस्पायर करेंगे, तुमने एक पेपर लिखना है। पेपर लिखने का पता है क्या फायदा होता है? पेपर लिखने का फायदा ये होता है कि you have to find something new, even if it is 0.01%, it has to be something new. टेप आउट का मतलब ये हो गया कि नाउ एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कि आपको फ्लो समझ में आ गया। ये अगर आप अपने बच्चों को आर्म कर देंगे ना इन चीजों से, बड़े कॉन्फिडेंटली जाके वो मास्टर्स भी कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंटली जाके जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक ये बड़े एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। और फिर एफपीजीए हमारे पास लैब्स में होने चाहिए यार। प्रोग्राम करो, ये प्रॉब्लम है, पार्टीशन करो इसको, इसके ऊपर प्रोग्राम करो, सीखो कि एफपीजीए से चीज कैसे बन सकती है।
और सबसे बड़ी बात है कि मैं जैसा कह रहा हूँ कि वो EFPGA उनके चिप में हो, वो आपने आप लैपटॉप से लगा के अपना FPGA आप प्रोग्राम करें, माशाल्लाह, वो तो फिर बच्चे में बड़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आप उनको जिंक देंगे, वो कहेगा यासिर भाई फिक्र ही ना करें, मैं आपको अभी बताता हूँ जिंक को मैंने कैसे प्रोग्राम करना। हमारे बच्चों में हमने ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है, फिर आगे अल्लाह मियां रास्ता खोलेगा। सेम गोज विद द गिटहब प्रोफाइल। आपकी गिटहब प्रोफाइल जो है नई CV है आपकी, तो अगर कितनी अच्छी आपकी गिटहब प्रोफाइल होगी, सो जिशान एक्चुअली उसकी गिटहब प्रोफाइल माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अभी इसने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जिशान की पूरी टीम है, उसमें जिशान, सज्जाद, उस्मान, चारों 2 बच्चे और भी हैं, तो उस्मान एंड वलीद को मेंशन करना चाह रहा हूँ। इन सब ने बेसिकली अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में टेप आउट किया। इसमें हार्डवेयर पार्ट भी है और सॉफ्टवेयर SDK पूरी आप C में कोड लिखेंगे एंड देन इट विल कंपाइल यूजिंग कंपाइलर और सारा वो। तो अभी वो उसके हम एक बुक बनाना चाह रहे हैं पूरी के, किस तरीके से जो एक इनिशियल लेवल का बच्चा है ना, वो किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है फॉर टेपिंग आउट फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू। देखिए, अगर हम 2 साल में ऐसी जगह पहुंच जाएं कि पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियों में जो बच्चा टेप आउट करना चाहे हम उसको एक मौका दें, जो बच्चा पेपर लिखना चाहे वो लिखे। और ये अब बात नहीं रहेगी कि जो मास्टर्स और PhD पे पेपर लिखे जाते हैं वो बात खत्म हो गई। हमारे अब बच्चे अंडर ग्रेजुएट में ये कर सकते हैं और हमें उनको इनकरेज करना चाहिए। और मैंने ये देखा है कि जब आप किसी बच्चे को चैलेंज देना, बच्चा आपको साबित करके दिखाएगा। हम चैलेंज ही नहीं करते, हमें चैलेंज करना चाहिए। यार जाओ फाइट करो, ये तुम मुझे नहीं पता कैसे लिखोगे, ये नई चीज लेकर आओ, जब तक शक्ल नहीं दिखाना मुझे, जब तक ये नई चीज नहीं आ जाए, जाओ, वो लेकर आएगा। और मुझे एक और अच्छी बात लगती है, आपके हर प्रोजेक्ट में मुझे 2-3 लड़कियां जरूर नजर आती हैं। ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने लड़कियों को इनकरेज करना है, उनको साथ लेकर आना है। देखिए, मैं चाइना आके जब बड़े अरसे का, मुझे चाइना की सबसे बड़ी अच्छी बात क्या लगती है ना, आप मौजे तंग को पसंद करते हैं नहीं पसंद करते, डिफरेंट बात है। मौजे तंग ने क्या अच्छा किया बुरा किया मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक काम किया, उन्होंने चाइना में औरतों को एम्पावर किया। चाइना में, अमेरिका में नहीं है, पाकिस्तान में तो खैर नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, चाइना में औरतें एम्पावर्ड हैं। आप चाहे कहीं चले जाएं, कोई काम देख लें, डजंट मैटर, क्रेन चलानी है, ब्रिक लेइंग हो रही है जनाब, ट्रैक्टर चल रहा है, सफाई हो रही है, जेनेटर है, डजंट मैटर, CEO बैठी हुई है, बोर्ड रूम में हर जगह औरत बैठी हुई है। आप ये देखें, जब भी एलिवेटर में आप किसी बिल्डिंग में ऊपर जाया करें, एक बात नोटिस किया करें, कितनी औरतें हैं कितने मर्द हैं, बस ये करें आप। न्यूयॉर्क में भी जाके करें, चाइना में भी करें, NED में भी करें, कॉमसेट में भी करें, अवसीन यूनिवर्सिटी में करें, बस हर एलिवेटर में जब कोई इकट्ठे लोग हो ना, तो ये देखें लड़कियां कितने हैं, लड़के कितने। कई दुनिया में कहीं करके देख लें, चाइना वो 50-50 निकलते हैं। हमने इसीलिए देखें, कोई भी दुनिया तरक्की नहीं कर सकती जबकि आपकी 50% पॉपुलेशन जो है ना आपके साथ नहीं खड़ी हुई। और ये पुराने जमाने की बातें हो गई हैं यार, अब ये सब फजूल। हमने औरतों को इनकरेज भी करना है और इनको एम्पावर भी करना। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला हमारी औरतें हमारे साथ खड़ी हो ना। देखिए, जिस घर में मैं पैदा हुआ, मेरी अम्मी जो है, हमारे घर कोई घर खरीदा क्या, अम्मी ने खरीदा, गाड़ी खरीदी अम्मी ने खरीदी, एडमिशन कराया अम्मी कराती थी। हमने देखा कि कैसे औरतें करती। मेरी सारी बहनें हैं, 2 उनमें से PhD हैं, उन्होंने मास्टर्स किए हैं, बुक्स लिखी हुई हैं, दुनिया भर में क्या क्या काम किया हुआ है, सब कुछ कर सकती हैं औरतें और कर रही हैं। लेकिन अब हमने उनको नंबर को बढ़ाना है, ठीक है ना, वो अभी 10% पे है, उसको 50% पे लाना है। ये भी एक बड़ा हमारा कंपोनेंट है। तो अगर हम लिस्ट पब्लिश करें, पाक लॉन्च और इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज करें, बच्चों को और बच्चियों को ट्रेन करें और उनकी जॉब्स को अपना प्रॉब्लम बना लें, इनको जॉब दिलाना हमारा प्रॉब्लम, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर देखेंगे। मेरा ये ख्याल है, दिस इज व्हाट आई एम ड्रिवन बाय। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह किसी तरह से दुआएं करता रहता हूँ, पाकिस्तान में एक बार हार्डवेयर इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाए, तो जब तक हम मरने वाले होंगे तो हम ये कह सकेंगे यार कुछ हमने जिंदगी में किया। जब तक परेशानी रही नहीं सर, माशाल्लाह डेवलपमेंट में आप लोगों ने एफर्ट किया है, यासिर भाई ने, आप लोगों ने, और बहुत सारे लोग, डॉक्टर राशिद रमजान है, बहुत सारे, लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग हार्ड। और कराची में PF फीड में अरसलान भाई हैं, तो काफी लोग उन्होंने किया। डॉक्टर रूमी नकवी जिन्होंने बिल्कुल हमें बहुत माशाल्लाह, रूमी भाई को तो अनलिमिटेड एनर्जी उनकी, वो तो इज द ग्रेट गाय। तो उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट से लेके हमें बच्चों को इतना समझाया सिखाया, इवन मैंने बहुत लर्न किया उनसे। सो दैट्स हाउ वी ऑल, हमें मिलके ही करना पड़ेगा और टीम वर्क से ही करना पड़ेगा, और दिस इज द ओनली वे। और आपकी बात बिल्कुल सही है, जब हम स्किल डेवलप करेंगे तो खुद ब खुद लोग आपके पास आएंगे, इसमें कुछ शक की बात नहीं। काम इतना दुनिया में है ना,
तो काम तो इतना है ना, हमें पता है काम है। अगर दो काम है, एक तो हमने बंदे ट्रेन करने हैं और फिर जोड़ना है। अच्छा, जोड़ने का अच्छी बात है, गिग इकोनॉमी में हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे बच्चे अच्छा काम करें, वो गिग इकोनॉमी उनको ढूंढ लेगी। डिजाइन सेंटर जो लाने हैं ना, वो बच्चे नहीं कर सकते, वो हमने करना है। उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कोविड खत्म होता है ना, प्लीज चाइना का रुख पकड़ें। एज अ प्रोफेसर मेरे बस में जो कुछ भी है मैं भी करूंगा। हर यूनिवर्सिटी से आप जोड़ें, ज्वाइंट प्रोग्राम है, स्प्लिट प्रोग्राम बनाएं, बच्चों को यहाँ भेजें, मास्टर्स करें, पीएचडी करें, वापस जाएं पाकिस्तान, यहाँ चाइना में काम करें, चाइना में मैंड्रिन सीखें, वो फिर लाएंगे बिजनेस। ठीक है ना? वो उनको वो नफरतें नहीं है यहाँ पे, वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो कि वेस्ट में हमारे खिलाफ हैं। तो ये फिर तो ये जैसे आप लोगों की मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि जैसे ही होता है कि यूनिवर्सिटियों से प्रोफेसर आए, ज्वाइंट प्रोग्राम बनाएं, कोलैबोरेशंस करें, फिर चाइना से इवेंचुअली मेरा ये ख्याल है बड़े डिजाइन सेंटर जब खुलेंगे ना, वो चाइनीज कंपनी का ही खुलेंगे, वो अमेजोन के नहीं खुलेंगे, गूगल के नहीं खुलेंगे। गूगल में देखें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनकी कोई भी नेशनैलिटी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनकी नेशनैलिटी नफरतें हैं सर, नफरतें हैं। उन नफरतों को हम ओवरकम नहीं कर सकते। तो वो वेस्ट में हैं, वो दे आर ऑलरेडी देयर। चाइना में ऐसी कोई मसला नहीं है, चाइना में हमारे लिए बेनिफिट है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी ये कि जैसे ही कोविड खत्म हो, प्लीज, मैं एचईसी को भी इंकरेज करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मिनिस्टर ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी हैं शिबली फराज साहब, मैं उनको भी इंकरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, मैं उनको भी इंकरेज कर रहा हूँ कि रास्ता पैदा करें, आप लोगों के लिए आसानियां करें, आप लोगों के एक्सपेंसेस को पे करें, ताकि आप ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स बनाएं। ठीक है ना? चाइना से काम भी लाएं, प्रोजेक्ट्स भी लाएं, और फिर इंशाल्लाह ताला डिजाइन सेंटर भी खोलेंगे। बिल्कुल माशाल्लाह, हम आधे घंटा ऊपर चाह चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन है चैट में, मैं उसको देख लूं, अगर हम में से कोई जवाब दे सके। सो बेसिकली कुछ का जवाब ऑलरेडी आ चुका है। हसन बशारत है, वो सवाल पूछ रहे हैं, कैन यू कमेंट ऑन द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान, इज इट करंटली हैपनिंग, वायबल एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फॉर फ्यूचर, थैंक्स। सो इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहेगा? यासिर भाई जवाब दें, इसलिए कि ही इज मोर लोकल, इनके जवाब ज्यादा रेलेवेंट होगा मेरे ख्याल से। पता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग तो कम ही हो रही है मेरा ख्याल है पाकिस्तान में। ज़्यादातर तो हम इवन हमने तो कह लें कि फैब्रिकेशन कोई करवानी हो तो वो चाइना से ही हम करवाते हैं, क्योंकि वो चाइना में ज़्यादा सस्ती पड़ जाती है। यानी कि अगर आप बोर्ड वगैरह करें, इधर कुछ तराज है एक आध कंपनी मेरा ख्याल है, वो कुछ अच्छा काम कर रही है। वो उन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बोर्ड्स वगैरह बनाए हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो कुछ हो सकता है कि मुझे ना पता हो। और ऑब्वियसली हमारी बहुत सारी, जिस तरह गुजरांवाला में इंडस्ट्री है, फैंस बना रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो उनके कई लिंक्स हों और वो बना रहे हों। या कॉलर वाले एक हैं जो उन्होंने भी स्टार्ट, वो जो गाय का कॉलर बना रहे हैं, और उनके वो भी कुछ ऐसा सेटअप स्टार्ट कर रहे थे कि जो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो। ये जो लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं यासिर भाई, ये एनआरटीसी टाइप की, ये कुछ काम ऐसा कर रहे हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ये यानी जैमर्स और इस तरह के ये लोकल जो चीजें यूज होते हैं ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, राइट? लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने अगर कुछ करवाना हो, यानी हमारा कुछ तजर्बा ऐसा रहा था कि हमने लोकल कुछ बोर्ड बनवाए, तो वो उनमें कुछ फॉल्ट्स है, फिर हमें चाइना से बनवाए, और हमने जब उसकी कॉस्टिंग की तो हमने देखा चाइना से सस्ता पड़ा था। तो फिर हमने कहा कि अच्छा यार चलो चाइना में, या तो वो आप पीसीबी मशीन रख लें इधर ही, वो काफी कॉस्टली पड़ती है, वो प्राइवेट सेक्टर में भी कम है, यानी देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। जी, वो दिस इज अ वर्ल्ड एक्सपीरियंस। हमारी थोड़ी पूरी दुनिया ये कर रही है, चाइना जैसे पाकिस्तान का क्या चक्कर है? एवरीबॉडी हैज फाउंड आउट के क्वालिटी भी अच्छी होती है और सस्ती भी होती है। पता नहीं ये चाइनीज क्या, ये याजूज माजूज की जो कौम है ना, ये कोई नॉर्मल तो है नहीं, ये तो कुछ मुझे याजूज माजूज की कौम ही लगते हैं। ये पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन कर लेते हैं। बड़े मेहनती लोग हैं, बहुत पहले बड़ा मशहूर था कि चल गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो चाइना स्टार्ट हो गया। ऐसी बात नहीं है, आप बड़े मेहनती लोग हैं और माशाल्लाह। जब चाइना के नए नए स्मार्टफोन आए थे तो लोग हंसते थे ना, मतलब ये कैसे स्मार्टफोन है, 5,000 रुपए की कॉपी बनती थी। लेकिन उन्होंने अपनी इकोनॉमी से बिल्ड की, 5,000 रुपए के फोन बेच के, और आज हुआवे जो है वो आई थिंक सबसे कम्पीट कर रहा था। उनको बेसिकली इस तरीके से गिराना पड़ा हुआवे को, जिस तरीके से गिराया उन्होंने। मैं वो एक सच्ची बात बताऊं, हुआवे को जो इन्होंने गिराने की जो स्कीम बनाई है ना, वो बैकफायर कर रही है। पता है क्या हुआ है? हुआवे जो है ना, वो एक AT&T की प्रॉब्लम बनता जा रहा था चाइना के लिए।
अमेरिका में जब AT&T बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी तो सुप्रीम कोर्ट को उसके खिलाफ एंटी ट्रस्ट एक्शन लेना पड़ा, उसको छोटी बेबी बेल्स में तोड़ना पड़ गया, जिससे नेटवर्क टेलीकॉम का ये फायदा हुआ कि अब फोन सस्ते हो चुके हैं और बल्कि फ्री हो चुके हैं। वावे इतना बड़ा होता जा रहा था कि सारे इंजीनियरिंग सक करता जा रहा था। ट्रम्प ने बेवकूफी करके एहसान अगर करता तो वावे को छोड़ देता तो वही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है एक दिन और सारी इनोवेशन जीरो हो जाती। उसने चाइना पे एक बहुत बड़ा एहसान किया, उसने वावे को तोड़ दिया। जब वावे टूटा तो 200 कंपनियां बन गई हैं स्टार्टअप, उनको फंडिंग भी मिल गई है। अब वो मिलके वो काम कर रहे हैं जो कि चाइनीज गवर्नमेंट में हिम्मत नहीं थी ये काम करने की, उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वावे को तोड़े तो अब उसमें हिम्मत होगी, उन्होंने बाकी टेक जॉइंट्स पे अब अटैक करना शुरू किया है। अब हिम्मत आ गई, एक्चुअली हिम्मत आई है वावे से उनको, कि ऐसी बात नहीं है कि आप अलीबाबा को आप छेड़ नहीं सकते। पहले चाइनीज गवर्नमेंट का ख्याल था कि ओए यार वावे को छेड़ा तो पता नहीं क्या वो कोई हमटी डमटी है, अगर वो टूट गया तो फिर बड़ी मसला ना हो जाए। उन्होंने क्या देखा, जब हमटी डमटी टूटा तो कोई इतनी बुरी सिचुएशन नहीं हुई, बहुत सारी अच्छी कंपनियां बन गई। अब वो अगर 200 में से अगर 150 फेल भी हो जाए तो भाई 50 तो अच्छी हो गई ना। अब मेरा ये ख्याल है कि ये एक एंटी ट्रस्ट एक्शन हो गया वावे का, तो वो अच्छा ही हो गया मेरे ख्याल से। अब वावे फैल जाएगी और कंपनियां नई नई इनोवेशन होगी, अच्छी बात है, कोई बात। आई डोंट थिंक दैट वाज ये अमेरिका की इंटेंशन नहीं थी। अमेरिका तो उसको ब्रिंग डाउन करना चाह रहा था। मेरे ख्याल से अनजाने में ये एक थोड़ी सी ये मेरे ख्याल से गलती हो गई है उनके साथ, मेरा ख्याल। अच्छा, एक और सवाल आया मोहम्मद अली साहब का। सर काइंडली सजेस्ट वन कोर्स दैट कैन अलाउ नॉन थीसिस बेस्ड स्टूडेंट्स टू लर्न टू राइट एंड रिसर्च पेपर एंड पब्लिश इट। आई थिंक आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, यूट्यूब पे आप सर्च करें हाउ टू राइट रिसर्च पेपर और उसके बहुत सारे प्रोफेसर्स के मिल जाएंगे, अच्छा जी यूनिवर्सिटीज के मिल जाएंगे, तो उसको फॉलो करें एंड देन राइट इट। लेकिन रिसर्च पेपर लिखने से पहले काम करना पड़ता है, काम में फिर नोवेल्टी होनी चाहिए कोई ना कोई, और फिर उसको डिस्कस किया जाता है, उसका तरीका होता है इंट्रोडक्शन लिखने का, चीज लिखने का, वो भी हम एक सेशन कर सकते हैं। और कौन से सवाल हैं इसके अंदर? कुछ सजेशंस हैं लोगों ने दी हैं। सर आवर एजुकेशन सिस्टम एंड कोर्सेज इज टू फार फ्रॉम द इंडस्ट्री, हाउ वी कैन कनेक्ट द एकेडमिया विद इंडस्ट्री। तो अभी सारी सवाल आई थिंक इसी लेक्चर्स में बातें हुई हैं ऑलरेडी। कोई इसमें ऐड करना चाहेगा तो प्लीज ऐड करें। देखिए हमने जो काम सारी ट्रेनिंग स्टार्ट की है टेप आउट वर्ल्ड में, और वो सारी अब कोलैबोरेशन स्टार्ट हो गई है। हम एक काम कर सकते हैं उसके अंदर कि हम एक लिस्ट पब्लिश करना शुरू कर देते हैं, ओपन प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर कोई काम कर रहा है आप ज्वाइन कर लें। जरूरी तो नहीं है ना कि आप ये कह रहे कि जी मैं ये 10 प्रॉब्लम्स पे काम कर रहा हूँ। किसी स्टूडेंट को भी कोलैबोरेट करना है, आप इसे फर्क नहीं पड़ता किस यूनिवर्सिटी में आप, ये हमें ओपननेस होनी चाहिए। भाई अगर मुझे एक काम का शौक है वो अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरी यूनिवर्सिटी में पेपर ही लिखना है ना आपने, वहां लिख लें आपको। तो इसी तरह एक ओपन कोलैबोरेशन, हम एक लिस्ट पब्लिश, मेरी थोड़ी कंट्रीब्यूशन फिजिकल डिजाइन में ये है कि मैंने 1989 में IBM के साथ और इंटेल के साथ मिस की, अगर आप कभी सर्च करें तो मैंने एक लिस्ट पब्लिश करनी शुरू की थी, टॉप 10 ओपन प्रॉब्लम्स इन फिजिकल डिजाइन। बिकॉज लोग मेरी बुक यूज किया करते थे तो दे वर वेरी फेमिलियर विद माय नेम। तो मैंने सारे प्रोफेसर, मैंने उसका फायदा ये हुआ था कि जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, लोग इंडिया में और जो लोग अमेरिका में नहीं बैठे हुए उनको पता हो कि टॉप प्रॉब्लम्स क्या हैं। और ये एंडोर्स हो रही थी अमेरिका, ये IBM एंडोर्स कर रहा है, मोटरोला एंडोर्स कर रहा था, इंटेल एंडोर्स कर रहा था, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने हाँ यही प्रॉब्लम है, तो उसके कोऑथर जो उसके लिस्ट के थे ना, तो हम इसके कोऑथर बन जाते हैं। टॉप 10 प्रॉब्लम्स और टॉप 20 प्रॉब्लम्स दैट पीपल इन पाकिस्तान कैन राइट पेपर्स अबाउट। फिर उसका कोई एक इंचार्ज बना देंगे प्रोफेसर कि भाई ऐसी कोई पेपर बने, तो आप उसको इसकी कोऑर्डिनेशन शुरू की, पेपर्स पब्लिश होना शुरू हो गए। हर प्रोफेसर को एरिया तो होता है ना, तो उसको हम पकड़ लें कि भाई कौन सी आप देखें ना, मुझे तो नहीं RF डिजाइन का, मुझे तो कद्दू भी नहीं पता, लेकिन जिसको RF डिजाइन का पता है कि जी RF डिजाइन में ये टॉप 5 प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है जी। हाँ मे बी कुछ एरियाज है जिसके अंदर मुझे पता है, मैं उसके अंदर 5 प्रॉब्लम्स बता दूंगा, तो ये पब्लिश कर देते हैं लिस्ट। लेट्स पीपल कंट्रीब्यूट, वर्क टुगेदर, पब्लिश टुगेदर। माशाल्लाह सर, आपको बहुत टाइम ले लिया, हम आप 1:30 बज रहे होंगे चाइना में, सॉरी फॉर दैट। अब हम बेसिकली अब इसको वाइंड अप करते हैं। अब मैं आप दोनों से कहूंगा कि वन लाइनर कुछ भी लास्ट मैसेज दे दें बच्चों को। यासिर भाई पहले आप दे दीजिए, फिर सर नवीद आप दे दें, देन हम इसको क्लोज करते हैं।
हाँ जी, मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक तो हम बता चुके हैं कि मतलब मैंने जिस तरह बताया कि जॉब इज़ 300 आवर्स अवे, उसके साथ में ऐड जो आपने बात की थी कि आपकी गिटहब प्रोफाइल हो, आजकल आप अपना काम गिटहब पे रखिए। हम लोगों ने जॉब के एड्स में ये लिखना छोड़ दिया है कि आपकी डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो जब हम आजकल सही बात हायर है। कर रहे होते हैं हम कहते हैं कि सेल्फ बेस्ड लर्नर भी अप्लाई कर सकता है। अभी तक कोई आया नहीं लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आ जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चंस को एस करते हैं तो हमें क्या इशू है, हमें तो शायद ज़्यादा अच्छा लगे कि एक ऐसा बंदा आ गया जो सेल्फ ड्रिवन था, तो वो होगा। तो ये मैं नवीद भाई आप मैं तो closing सिर्फ, हाँ, मैं तो सिर्फ बच्चों से एक बात कहूंगा कि यार एक बुक है जिसका नाम है टैलेंट इज ओवररेटेड। जेफ कॉल्विन ने वो बुक लिखी थी। आप थोड़ा सा टाइम निकालें, उस बुक को पढ़ें। बुक ये कहती है कि टैलेंट कोई चीज नहीं होती। टैलेंट लफ्ज ही डिलीट कर देना चाहिए, इसलिए टैलेंट कोई चीज ही नहीं होती। टैलेंट एक ग्रीक्स ने एक लफ्ज इजाद किया था टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द गॉड्स एंड नॉन गॉड्स। भाई आपने कहा कि भाई मैंने पियानो सीखना है, यासिर आपने कहा कि मैंने पियानो सीखना है, नवीद शर्वानी साहब आपसे कहेंगे यासिर भाई देखें आप में टैलेंट नहीं है। ये एक तरीका है यासिर भाई को डाउन करने का। हाँ, अली भाई आके कहेंगे हाँ तुम में टैलेंट है, तुम जा पियानो सीखो। अब ये मैंने एक डिसाइड कर लिया कि हालांकि ऐसे कोई जीन्स नहीं होते टैलेंट के, हमने सारी रिसर्च करके देख ली। तो साबित जेफ कॉल्फिन साहब ने ये किया कि चाहे आप मोटजार्ट को ले लें, चाहे आप टाइगर वुड्स को ले लें, चाहे आप जेरी राइस को ले लें, आप किसी को भी ले लें, किसी में कोई टैलेंट नहीं होता। उन्होंने वो घंटे लगाए होते हैं, वो 300 घंटे की आप बात कर रहे हैं ना। अगर आप में मेहनत है, अगर आप में ये कैपेबिलिटी है टू फाइंड अ मेंटोर जो आपको गाइड करे, और आप में ये बात है कि मैं मेंटोर की बात सुन के मैंने उसको इम्प्रूव करना है, और आप टाइम लगा सकते हैं, आप भी जेरी राइस बन सकते हैं, आप भी टाइगर वुड बन सकते हैं, आप भी मोटसार्ट बन सकते हैं। इनमें कोई खास बात नहीं थी। ये बात मैं हर एक बच्चे को कहता हूं कि ये ना हो कि मैं तो जी पाकिस्तान में हूं, मैं उस्मान इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में हूं, मैं फलानी जगह हूं। कुछ नहीं कहें आप। इस वक्त उस्मान इंस्टीट्यूट के बच्चों ने साबित कर दिया है कि वो एनईडी से आगे हैं। कैसे साबित कर दिया उन्होंने? मेहनत से साबित किया ना, गाइडेंस से साबित किया। मेंटर है उनके पास जो उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन वो मेंटर उसकी बात सुन रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये बुक आपको हिम्मत देगी कि हमारे साथ कोई टैलेंट की प्रॉब्लम है। टैलेंट होता ही कुछ नहीं, हम मेहनत है, अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है, हम उसको मेहनत करें, हम भी दुनिया के नंबर 1 बन सकते हैं। तो मैं हर एक आदमी जो मेरी बात सुन रहा है, प्लीज आप वो बुक करें। नहीं आपके बुक पढ़ने का टाइम, मुझे कहें पाक लॉन्च के साथ मैं ये लेक्चर्स देता हूँ पूरी दुनिया में, बट कंपनियों में देता हूँ मैं ये लेक्चर आपको पूरा, उसके जो 1 घंटे के अंदर टैलेंट इज ओवररेटेड का एक लेक्चर दे दूंगा, आप उसको सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। मैं ये हजारों दफा लेक्चर दिया हुआ, लेकिन उसका जो एसेंस है ना वो बहुत सिंपल है। हार्ड वर्क, guidance of seniors, our ability to listen and improve every day will take you to wherever you want to in life. It's very simple. चिप डिजाइन भी एक ऐसी चीज है, इंशाल्लाह सब मिलके करेंगे, बच्चों को अनेबल करेंगे, पाकिस्तान में एक अच्छा चिप डिजाइन सेंटर्स बन जाएं, हम लोग भी खुश होंगे। और जब हम बूढ़े होंगे ना तो फिर हम जाके बैठा करके बातें करेंगे, अपने बच्चों को बताया करेंगे, याद है पाकिस्तान में चिप डिजाइन नहीं हुआ करता था, लेकिन अब है। ये 30 साल बाद हमारे पास भी कोई टॉपिक होगा, फर्ज करें चिप डिजाइन नहीं होगा, तो फिर हम बच्चों को से टॉपिक, हमारे पास टॉपिक ही कोई नहीं होगा बात करने का। तो हमारे लिए भी जरूरी है कि ये पाकिस्तान में, ताकि वी हैव अ टॉपिक व्हेन वी गेट ओल्ड। शुक्रिया अली भाई आपका, शुक्रिया यासिर भाई आपका, बहुत मजा आया, बड़े मजे की बातचीत हुई। मेरे लायक कुछ भी खिदमत हो प्लीज लेट मी नो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। बिल्कुल, एक रिक्वेस्ट है। बेसिकली डॉक्टर नबी शर्वानी इज वर्किंग एज अ को-चेयरमैन एज OSFPGA। सो बेसिकली OSFPGA में जो लोग इंटरेस्टेड हैं FPGA फैब्रिक को ओपन सोर्स यूज करने के लिए और उसको ऊपर टेप आउट करने के लिए, चिप बनाने के लिए, दे शुड एक्चुअली गो देयर एंड रजिस्टर देमसेल्व्स। और आल्सो पाक लॉन्च को भी आप सर्च करते रहें। माइक्रोट्रॉन रिसर्च लैब ने बेसिकली अभी OSFPGA और पाक लॉन्च कर मिलकर ट्रेनिंग की है। और अगर आप चिप डिजाइन करना चाहते हैं और आपका कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर स्टूडेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो आप उन 7-8 वीडियोस हैं, उसमें वो सिंपल सा डिजाइन टेप आउट करने का तरीका बताया गया है ओपन सोर्स टूल्स के जरिए। आप उसको भी कोशिश करें, देखें। इफ यू वांट इंसाइटफुल प्लीज, और बच्चों तक भी पहुंचे। सो ऑलरेडी जितना काम हमारे जिम्मे है हम कोशिश करके वो कर रहे हैं, फीडबैक भी कर रहे हैं। अब आप लोगों का काम है वो मोमेंटम बनाना और उसको लेके आगे चलना।
हमारा काम सिर्फ और सिर्फ गाइड करके मटेरियल प्रोवाइड करना है। रेंजैम की तरफ से ऑलरेडी बहुत सारे FPGA के लेक्चर्स मौजूद हैं। जिसने FPGA बेस्ड डिजाइनिंग करनी है यूट्यूब करे, सर्च करे, कोई मसला है, कोई सवाल है तो आप पूछें वहाँ पे और आपको जवाब मिलेगा। अगर आप खुद कोशिश नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपकी जगह आके कोशिश नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आसानी पैदा कर सकता है, और दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो आई थिंक फ्यूचर के उस्ताद सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर ही होंगे आई थिंक, क्योंकि कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल, हमसे बहुत अच्छा कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे। यूट्यूब इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी आई थिंक, ठीक है, आप उस पर जाकर बहुत सारी चीजें। तो आज का दौर डिफरेंट है। हमारे दौर में इंटरनेट नहीं होता था, तो खैर हमारे दौर में तो आगे, खैर सर के दौर में नहीं था, हमारे दौर में तो बुक में पढ़ना पड़ता था, सीखना पड़ता था। सर हमारे दौर में तो गालिब लाइब्रेरी हुआ करती थी 2 नंबर नाज़िमाबाद में। अच्छा तो ऐसा है। तो अब आपके लिए बहुत आसानी है और आप बहुत सारी चीजें एक्सेलरेटर का दौर है, आप भी एक्सेलरेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको 4 साल की इंजीनियरिंग भी करनी पड़े। मैं एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ वो वक्त दूर नहीं है कि मैट्रिक का बच्चा जब पेपर आउट कर रहा होगा, आई थिंक वो दूर नहीं है। जिस तरीके से शुरू हो रहे हैं और आने वाले हैं, तो पेपर मैं देख रहा हूँ ओपन सोर्स में, ओपन सोर्स के अलग कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं जिसमें गिटहब के कोड्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल होते हैं। आप इस दुनिया में आएंगे तो आपको पता चलना शुरू होगा कि क्या क्या चीजें अवेलेबल। याद रखिएगा जितने भी स्टार्टअप हैं, दुनिया के जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो मैंने स्टडी किया है, वो पहले किसी न किसी ओपन सोर्स टूल से इंस्पायर होकर बने हैं। मतलब यूनिक्स को बेस पर होके ही विंडोज बनी है, यूनिक्स के बेस पे ही आपकी माइक्रोसॉफ्ट और कंपनीज बनी, इवन मैक बना है, राइट। टच वाला बिट जो है वो किसी ने पहले किया था। दिस इज हाउ इट इवॉल्व। तो आप जब तक बेस ऑफ टेक्नोलॉजी पे नहीं जाएंगे आपको पता है। ओपन सोर्स इज अ लाइफलाइन फॉर पाकिस्तान, आई थिंक वी शुड टेक इट। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद, आपके टाइम का, आपका हमने आधे घंटे 45 मिनट बहुत ले लिए। और यासिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाबियां दे। और इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे फॉरेन क्लाइंट भी अगर में बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनके सामने आएगी। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में, बट हमारी कमिटमेंट वैसे ही है जैसे पहले दिन थी, डॉक्टर नवीद की भी और यासिर भाई की भी। थैंक यू ऑल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।